the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. This is how you start your day, sir. Morning routine. बस मॉर्निंग हम उठते हैं हाँ और दिस इज़ आवर प्लेस वेयर वी हैव आवर ब्रेकफास्ट. हाँ नॉर्मली पूरा दिन हम यहीं रहते हैं ज़्यादातर. अच्छा लंच भी डिनर भी वी लाइक माई वाइफ माई सन माई मदर. हाँ सो दिस इज़ लाइक आवर लाउंज. तो पेट्स के साथ बैठ के वी हैव ब्रेकफास्ट है. हाँ एक बेसिक सा सवाल करता हूँ लाइक
you were quite into fitness. So what do you go for your breakfast mostly? यार माई ब्रेकफास्ट इज़ फिक्स्ड नॉर्मली. आज मैं आपके साथ बस आपका शेयर कर रहा हूँ. माई ब्रेकफास्ट इज़ लाइक आई लाइक टू हैव वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड देन आई have Kadaknath eggs. Okay. I have a farm here. I have Kadaknath like hens here. So daily I have 6 whole eggs of Kadaknath. Okay. And then along with that I have milk. In that I have it's a smoothie. तो उसमें आपके turmeric और cinnamon, oats, seeds. तो ये सब करके I have that smoothie. So this is my breakfast. Ma'am, I have a question. Like हम actually लोगों नहीं पता we met yesterday, है ना? The first thing I realized और जो मुझे महसूस हुआ ना जब आपसे मिला है, टिपिकल डीसी की वाइफ नहीं लगा आप मुझे. लाइक मुझे एक होता है ना कुछ लोगों को लगता है कि कई कबार लोगों को लगता है मतलब आई मेट अदर्स सम ऑफ द ऑफिसर्स वाइफ ऑल्सो बट मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा बट यू नो वो कई कबार होता है कि यू नो डीसीज वाइफ मुझे लगा कि आई जस्ट मेट समवन लाइक अ कॉलेज सीनियर और अ वेरी सिंपल पर्सन और 10 मिनट में हम लोग काफ़ी अच्छे बातें कर रहे थे एंड आप कुछ बता रही थी. ये कहाँ से आया फिर? आई थिंक कभी मैंने इस चीज़ को देखा ही नहीं कि मैं डीसी की वाइफ हूँ. अच्छा. ये तो बस लोग हैं जो बताते हैं कि डीसी की वाइफ हूँ. बट मैं जैसी पहले थी आज भी ऐसी हूँ और आगे भी होपफुली मैं ऐसी ही रहूँगी. अपनी लाइफ में मस्त रहो. डीसी तो एक आपने क्या बोलेंगे लोगों के लिए पोस्ट है, टेम्पररी पोस्ट है. बट मेरे लिए तो जतिन इज़ लाइक जो वेरी फर्स्ट डे माई कॉलेज था आज भी जतिन इज़ सेम टू मी. तो उस हिसाब से मुझे शायद ये चीज़ आती है कि वो बंदा एक है बट ये जो पोस्ट है ये बदलती रहती है. तो उस हिसाब से ही मैं ऐसे रहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे ही पसंद किया था तो मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी. आई थिंक आप लोग की शादी बिफोर यू बिकेम द ऑफिसर हुआ था ना? Yes. You got married? We were in Delhi, yeah, we were in college. तब तो we were nothing. मतलब हम कुछ भी नहीं थे यार. Like we are together since more than 18 years now. 18 years. And we are married since more than 11 years. तो कॉलेज में तो हम मिले थे और तब से फिर हम साथ ही हैं. तब सोचा किसने था कौन आईएएस क्या इसने मुझे बताया आईएएस आईपीएस क्या होता है. मेरे मुंह से इन्होंने सुना था कि आईएएस क्योंकि ये फॉर्म भर रही थी. अब भरना अच्छा, मैं करना चाह रही थी क्योंकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे. तो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होती थी कि ना मुझे भी कुछ ऐसा ही कुछ ना. आई रियली वांटेड टू बी एन आईपीएस ऑफिसर. बट तब तक मुझे ये चीज़ पता नहीं थी आईपीएस वाला ना चीज़. तो पापा को लगा कि शायद ना दिल्ली पुलिस इज एट द लोअर लेवल कांस्टेबल हेड कांस्टेबल इट्स नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स. उनका एक पर्सनल ओपिनियन था. तो मैंने उस चीज़ से पीछे मैंने कहा फिर कुछ बड़ा करते हैं. तो मैं आईएएस किसी ने मुझे बताया तो मैंने इसको बोला वी वर इन 4th ईयर आईपीएस. तो मैंने बोला मेरे को ना यूपीएससी का फॉर्म लेने जाना है. तो ये मुझे बोलता है ये क्या होता है. मैंने कहा ये ना सबसे बड़ी पोस्ट होती है. तो ही हैज़ नो आइडिया अबाउट दिस थिंग कि ऐसा भी कुछ होता है. उसके बाद मुझे लगता है कि इनकी जो वो है ना जर्नी वो बनाने की वहाँ तक पहुँचने की उसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि मेरे से पहले तो जानते भी नहीं थे कि आईएएस होता क्या है. तो एक्चुअली मैम ने आपको पहली बार She was the one. I was not aware IAS IPS तब क्या. गोल क्या था मतलब क्या करना है जिंदगी में बिकॉज यू सेड 4th ईयर वो एक क्रूशियल टाइम होता है Crucial इंजीनियरिंग ना. हाँ, but- आप कौन सी इंजीनियरिंग थे? हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दोनों से? नहीं ही इज़ फ्रॉम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. I am IT guy. तो ये हुआ कैसे? ये जस्ट story. मतलब मैं फर्स्ट ईयर में मैं तो शुरू से था 4 ईयर कोर्स. शी वाज अ लेटरल एंट्री. ओके. I have तो done my ये- diploma first, then I got admission in the second year of Okay, okay. BTech. हाँ ठीक है. So तो फिर ये सेकेंड ईयर में वहाँ पे आए और मैंने इनको देखा और बस फिर देखा और देखता ही रह गया और लव एट फर्स्ट साइट. लव एट फर्स्ट राइट हो गया. Because you love तो फिर इट टुक मी 1 ईयर टू कन्विंस हर. है ये और मैं उस टाइम आई वाज लाइक एकदम कमज़ोर. then he was like hardly 60 हार्डली 60. आई वाज वेरी लीन. and I was like Very a low. हरियाणवी जाट एकदम. एकदम जाट हट्टी खट्टी आप जिसको बोलते हो ना वो. और he was like 60 की. मुझे लगता है मैं इसको फूंक मारूंगी तो गिर जाएगा. नहीं नहीं ऐसा इसके लिए बहुत पंगा लिया मैंने जाट से. उनकी तरफ अट्रैक्ट ना. आई वॉज वेरी अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग ना कि लव मैरिज होनी चाहिए. मुझे लगता था सिर्फ अगेंस्ट फॉर लव मैरिज. ये सीरियसली Why? मुझे लगता था सिर्फ मेरे पापा और मेरे भाई को छोड़ दो बाकी दुनिया में जितने भी मर्द हैं सबको गोली मार दो. बच गए हम. क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता था Okay. कि ऐसे कैसे हो सकता है. क्योंकि आई थिंक हरियाणा में ना ये चीज़ बहुत डोमिनेटली सिखाई जाती है कि आप अपनी इज्जत के खिलाफ
दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एक रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स भी रहता है कि मुझे लगता है कि मैं जहाँ से मेरे पेरेंट्स मुझे लेके आए ना, और उन्होंने अगर मैंने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया तो मेरी जो आगे आने वाली जनरेशन है ना, उसको जो वहाँ के लोग हैं वो बैक स्टेप करेंगे कि एक उसको तो फ्रीडम दिया था, उसने तो ये कर लिया ना, तो तुम भी यही करो। सोसाइटी में भी सोसाइटी का वो इम्पैक्ट है, क्योंकि आई वॉज द ओनली वन इन माई फैमिली जो इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ी है। अच्छा, अदरवाइज बहुत फ्रॉम रोहतक। तो डैड दिल्ली पुलिस में थे, देन वी शिफ्टेड टू दिल्ली बिकॉज ऑफ हिज पोस्टिंग और ये सब। अदरवाइज वहीं से। कहाँ पे रहते हैं आप लोग दिल्ली में? दिल्ली में पुलिस लाइन, पीकलपुरा पुलिस लाइन, हाँ वहीं पे हम रहते थे। पूरा सब कुछ हमारा वहीं हुआ है। बट मेरे फादर की थिंकिंग बहुत अलग थी। अदरवाइज वो एक खाप पंचायत के मेंबर रह चुके हैं, आपको तो पता है। हाँ, तो अगर पता भी चल जाए कि तुम्हारी खुद की बेटी लव मैरिज कर रही है तो सीधा गोली ही मारते हैं। इशू हुआ था शादी में? तो इन्होंने बताया, मैंने बताया ना कि तब तो आईएएस भी नहीं थे। नहीं, अभी तो जब शुरू भी नहीं हुआ था तब से पंगे हो रहे थे कॉलेज में ही पंगे होने लगे थे कि जाट कम्युनिटी का कॉलेज है। उसमें सर आ जाते हैं कि जाटों को बिन बात किए, मतलब अभी तक मेरी और सर की कोई बातचीत भी नहीं हुई है, बट वो रूमर कॉलेज में फैल जाता है कि पंजाबी का लड़का है और जाटों की लड़की को ऐसे वो कर रहे हैं। तो हमारे कॉलेज के जस्ट सामने कब्रिस्तान था। अच्छा। वहाँ पर जाटों ने इसको घेर लिया। 100 जाटों ने। I was alone, 100 जाट। This was in second year, I think. Second year, third year, second year। पसंद कर लिया और मुझे पता भी नहीं है। पूरे कॉलेज को पता था कि I like that। और पूरे कॉलेज के जाटों ने 100 जाट होंगे, कब्रिस्तान है सामने और ये अकेला बंदा और 100 जाट। और मेरे को मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो तेरे को पता है उस लड़के ने तेरे लिए ये किया। मैंने कहा ये कौन है भाई? मैंने क्यों नहीं देखा किसी को। अच्छा, मतलब आप लोगों को नंबर एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं था तब। फोन्स तो थे, बस फोन्स थे। मैं बात, क्योंकि हम दोस्त थे जस्ट। अच्छा, बहुत शुरू की बात थी, पर कॉलेज में पता था कि I like that। ओके। इनकी तरफ से था कि मतलब वो, बट मेरी तरफ से पहले दिन से था कि मुझे इन सब सापे में नहीं पढ़ना। मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे करियर बनाना है, मुझे अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करना। अच्छा। तो मुझे ये पीछे से था कि इन सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो मैं बहुत गुस्सैल रहती थी, मतलब कोई चाहे भी तो अपना मतलब फीलिंग्स ना मुझ पर जाहिर कर पाए। ये एंग्री बर्ड है और मैं शांत बर्ड हूँ। तो ये वाली चीज़ थी। तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे चैलेंज किया कि अगर तू उससे प्यार नहीं करती ना तो मैं उससे प्यार करती हूँ, तो उसको जाके ये बोल। मूवी की स्टोरी। और मुझे लगा 10 लड़कों के बीच में वो मुझसे चैलेंज कर रही है, अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो ऑब्वियसली ये बात हो जाएगी। ये ना एक अभी शायद बहुत लोग देख के बोलेंगे कि यू नो एक, क्योंकि सर का एक वो चीज़ है डीसीज है ना, बट दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी। हम सबकी जिंदगी में ही होता है। वो फ्रेंड आई और मैंने इसको बोला सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। इसने बिना कुछ सुने कहता मुझे मंजूर है। मैंने कहा वेरी गुड शिवानी, ये देखो शिवानी तुमसे प्यार करती है और तुम शिवानी से प्यार करो, शादी करो, दफा करो। अच्छा, उसके लिए बात कर ली। और इसको लगा मैं अपनी बात करने आ रही हूँ और मैंने बोल तो दिया, बट क्योंकि मेरी स्कूलिंग हुई है गर्ल्स स्कूल से, डिप्लोमा भी गर्ल्स था, तो मेरा बॉयज से इंट्रैक्शन था ही नहीं। और मुझे लगा मैंने एक होता ना वो ईगो हर्ट कर दी लड़के की, अब तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं और ये मुझे मार डालेगा। मैं ऐसे बोल के वापस तो आ गई। उनके सामने मुझे बहुत ऐसे लगा कि मैंने बहुत स्ट्रांगली अपना स्टैंडर्ड, लेकिन जैसे ही मैं पलटी ना मेरे अंदर की जो वो थी ना घबराहट, मैं वो आज तक नहीं छुपा पाती हूँ कि क्या उस लड़की से दोस्त हो आप दोनों? हाँ, हैं अभी तक है हमारे दोस्त। और वो कहती भी है तो तुम्हें ना मैंने मिलवाया है नहीं तो होता नहीं है। तो ये फिर टर्न कैसे हुआ फिर? बस फिर उसके बाद वही जो एपिसोड था वो जाटो वाला। ये वाला कब हुआ था? ये जो तो इसको जाटो वाला तो मतलब इस शिवानी वाली बात तो पुरानी बात हो गई। स्टार्टिंग में इसको मेरे को ना मेरे से आई थिंक पहली नज़र का ही प्यार है इसका। मेरा नहीं है, मेरा पहली नज़र का प्यार नहीं। मैं बहुत ठोक बजा के मैंने प्यार किया, क्योंकि मेरे तो लाइन में ही नहीं था ना कि मुझे प्यार करना है। और वो भी अगर मैं करती तो मुझे लगता कि 6 फीट लंबा चौड़ा एकदम ऐसे हट्टा 6 फीट हो नहीं, वो बहुत 60 किलो के थे ना, बिल्कुल ऐसे कि मुझे ऐसे लगता कि अगर ऐसे, और पूरी कम्युनिटी का वो मेरा कॉलेज ऐसी जगह पे था जहाँ पे मेरी मेजॉरिटी थी मेरी कौम की। मेरी मासी का गांव वहीं पे है, तो सारे भाई है, जो भी दिखे बहन नमस्ते। आप समझ रहे हो? मतलब ये वहाँ पे अपने कॉलेज के एरिया में शी वाज लेडी डॉन, और इसके सारे डॉन भाइयों से मैंने अकेला पंगा लिया। मेरे को कह रहे हैं कि आपको पता है कहाँ खड़े हो, ये हमारा इलाका है। मैंने कहा भाई मैं भी ट्रांसपोर्टर की औलाद हूँ, पूरा दिल्ली मेरा है, तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। और किसी ने फिर कुछ नहीं करा। उसके बाद मैं सबका जीजा बन गया। जो भी आया, बट ये बहुत सही स्टोरी थी। मैं पूरे हरियाणा का जीजा हूँ। हाँ, ये बात सच है।
बट हमारी दिल्ली वाले भी तो कम नहीं होते हर चीज़ में। हाँ नहीं, दिल्ली वाले तो मैं ही हमारी ना थोड़ी स्टोरीज ऐसी सुनाई जाती है ना। एक्चुअली मेरे पापा की एक पोस्टिंग थी सेक्टर 3 रोहिणी थाने में। ओके। तो उस टाइम पे वी वर डेटिंग बट नोबडी नोज अबाउट दिस थिंग। 4th ईयर? हाँ, 3rd ईयर में। 3rd ईयर नहीं, तो वो नहीं बताया आपने, फिर पसंद कैसे हुआ? पसंद वही बताती हूँ कि हम थोड़ा दोस्ती रहे, मिलते रहे। मैंने इसको ना देखा कि ये कैसा बंदा है। ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि इसकी किसी से शर्त लगी हुई है कि मुझे रेनू को पटाना है। क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज्यादा लड़के थे, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ऐसे नफरत से लगी थी ना कि प्यार होता है तो एक यूपीएससी तो तभी जीत गया नहीं होता ना कि प्यार होता है तो हजारों में होता है। हाँ। वहाँ उस कॉलेज में जाके मुझे लगा कि हर किसी को प्यार कैसे हो सकता है यार। हर सिंगल डे यू आर गेटिंग प्रपोजल्स। तो मुझे अजीब सी चिढ़ हो गई थी। तो मुझे लगा और प्यार के बीच। हाँ, और मुझे लगा कि ना इसने पक्का लड़कों से शर्त लगाई होगी कि इसको कोई नहीं पटा पाया, इसको देखना मैं पटा के दिखाऊंगा। और जिस दिन मैंने इसको हाँ करूंगी, ये नेक्स्ट डे मुझे बोलेगा मैं फिल्मी स्टोरीज बहुत बनाती थी अपने दिमाग में ना। 18 साल से तो साथ हो गए यार अब। नहीं, तब की बात कर रहा, कोई शर्त नहीं था। लेकिन मैं ऐसी थी बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में करना तो ठोक बजा के। ऐसे ही नहीं थी मैं कि मतलब आज तुम बोल दो दोस्त हो, कल तुम दोस्त नहीं होगे। ऐसा मेरी लाइफ में नहीं, पर कंसेप्ट ही नहीं था। मेरा भी ऐसा नहीं। मैं तो इसने इतनी कोशिश की ना, मैंने जबरदस्ती कुछ नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं किया। ओके। आप समझ रहे हो? जैसे मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी उतना ही कंफर्टेबली फील कराया। वो फ्रेंड्स आके फिर मुझे बोल रही हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है। ये मैं फिर मुझे लगा कि अगर किसी को मुझे ही सिर्फ इम्प्रेस करना होता तो वो सिर्फ मुझे करता। वो मेरी फ्रेंड है जो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन वो उसको भी इक्वली रिस्पेक्ट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्राउडेड प्लेस पे खड़े हैं तो वो सिर्फ मुझे ऐसे प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये सबको ऐसे करता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मैं शायद पहली बार ये बता रही हूँगी कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने नोटिस की थी जतन में, क्योंकि इट्स अबाउट माई लाइफ। मैं ऐसे ही, पर मैं ऐसा ही हूँ अभी भी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब है कि इतना सा भी होता है ना, यहाँ से यहाँ नहीं बदला। इतनी वो चीज़ है। मैं एक चीज़ पर्सनल लेवल पे बोलूँ मैम, आपने ये टॉपिक उठाया सर से। जब मैं पहली बार कल मिला, पहले मैंने सर के फोटोज़ देखा तो एंड ऑल ना, तो मुझे कुछ हद तक ना, मैं एकदम पर्सनल, आई वांट टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, मुझे लगा शायद इस आदमी में थोड़ी ईगो होगी, है ना, क्योंकि उनकी अटायर एंड फोटोज़ वगैरह लुक्स में मैं शायद ऐसे बोले हाँ भाई बैठो क्या चाहिए, ऐसे 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 कुछ करेंगे, है ना। मुझे मतलब ठीक था, मैं बोले ठीक है। और मेरा ऐसा है कि जैसे ब्रेड एंड बटर नहीं है, बात करने में ठीक लग गया तो ठीक है, मना कर देंगे, मैं कल ही चला जाऊँगा। तो ऐसा मूड में था मैं। फिर जब आया ना, फिर सर ने बोला चाय लाए, तो हर 2 मिनट में सर के फ़ोन्स आ रहे थे कुछ ना, एंड बीच में भाई पियो ना, क्यों नहीं पी रहे हो, अरे भाई पियो ना। फिर मैं बोला नहीं यार, लाइक ही इज़ वेरी वो केयरिंग है उस, और उसी टाइम पे ना, क्योंकि एक क्या होता है, हम जब किसी को नहीं जानते ना, हम हर इंसान का एक सोच होता है उनके बारे में, जैसे आप बोल रहे थे, और वही पूरा ब्रेकडाउन हो गया। एंड जब मैं जिम पे स्पेशली आपको मिला, फिर तो टोटली लाइक कि नहीं, ये दोनों अलग ही दुनिया के इंसान हैं। नहीं, हम दोनों एक्चुअल हमारी ट्यूनिंग ही अलग है हम दोनों की ना। अब दुनिया में कहीं पे भी होंगे ना, हम दोनों को और किसी से फर्क ही नहीं पड़ेगा। वी डोंट केयर। जब हम दोनों साथ में है ना, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन आसपास क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम अपने में ही हो जाते हैं। कल मैं वो भी सोच रहा था, लाइक टचवुड जहाँ भी वुड, ये लाइक इस एज में दिस रिलेशनशिप के स्पार्क ना, कल मैं आप दोनों को देख रहा था, लाइक व्हेन वी वर शूटिंग, आप दोनों वो एंजॉय कर रहे थे। फिर अपने सर ने बोला ना कि शी इज़ माई गर्ल, एंड जब हम वो जिम ट्रेनर है ना, तो इस स्पार्क को बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे ना। जो एक वो भी पॉइंट है, जब हम इतना डिवोर्स, इतना एक्स्ट्रा मैरिटल देखते हैं, कहीं ना मुझे लगता है, मतलब आप सीनियर हो मेरे से, आप दोनों ज़्यादा बोल सकते हो, मुझे लगता है जो हमारा करीब के इंसान है ना, हम उसको कभी कभार वक्त नहीं देते, उनके साथ वो दोबारा प्यार नहीं करते, जैसे एक तो मुझे लगा। तो वो कल मैंने आप दोनों से ना सीख रहा था कि कल चल के जब मेरी शादी हो जाएगा, जब मैं आप दोनों की उम्र में आऊँगा, मैं उतना स्पार्क जिंदा रखूँगा अपने रिलेशन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट स्पार्क अलाइव। नहीं मतलब हमारा क्या है ना कि हम दोनों कभी गुस्सा भी नहीं होते हैं, हम दोनों मतलब लड़ना भी ना, आप गुस्से नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी ये गुस्सा होती है। मेरी सिस्टर है जो हमें क्या कहती है, हम एंग्री लव बर्ड्स हैं। हम एंग्री लव बर्ड्स हैं, क्योंकि हम मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिटेंड करने के लिए हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। कुछ भी प्रिटेंड व्हाट आई फील अबाउट हिम, मुझे अच्छा या बुरा जो भी लगेगा, मेरे को वो फ्रीडम है कि मैं मुंह पे बोल सकती हूँ। आई थिंक दैट्स अ स्टाइल ऑफ हरियाणवी पीपल का भी होता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मतलब मैंने इसको ये बोला कि यार तेरे दिल में कोई बात नहीं होनी चाहिए। के लिए ना किसी को, मतलब उसको मेरी ये बात ऐसे कहूँगी तो अच्छी लगेगी, मैं वो कर ही नहीं सकती। तो वो ना करने के लिए इसका भी ऐसा नहीं है कि नहीं यार, मतलब
तुमने एक दूसरी कम्युनिटी में शादी करी है, यू शुड बी लिटिल बिट पोलाइट, ऐसा कुछ। मतलब शुरुआत में जब हमारी शादी हुई थी, ये इतना धीरे बोलते हैं पूरी फैमिली ना, मुझे समझ ही नहीं आता था। मतलब हमारे घर में ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं होती, हरियाणवी हमारे घर ऊंची आवाज़ कोई बोलता ही नहीं। मैंने मतलब हमने आज तक कभी बात वैसे करी नहीं। बहरी हूँ, ये मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। और ये आती तो ऐसे बोलती, मैंने कहा इतना चिल्ला क्यों रही है, तो थोड़ा धीरे बोल में क्या हो गया। मैं कहा कैसे यार, वो कहते कि तुम गुस्सा, लेकिन गुस्सा नहीं, दिस इज माय नॉर्मल टोन, ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है। और मेरा क्या मतलब, ये गुस्से में होती है तो मैं बीच में जोक मारता हूँ, तो मतलब इसका ये टिपिकल हाई गुस्से पे नोट पे होगी, और मैं टिपिकल एकदम मजाक के मूड में होऊंगा, ऐसे रहता तो और गुस्सा बढ़ जाता होगा ना उस टाइम। नहीं हाँ, मुझे मेरा सच में नहीं, मैं फिर 2 मिनट में मना लेता हूँ। हाँ, मनाने की भी है, लेकिन मेरे को गुस्सा आता है तो फिर ये सामने वाले को होता है ना कि मतलब मनाना भी आना चाहिए। मैं कहता प्रभु गुस्सा शायद तभी होते हो जब पता है कि सामने वाला आपको मना लेगा। अगर नहीं तो आप क्या गुस्सा होके बैठे रहो, कौन पूछ रहा है, तो आप 1-2 बार हो जाओगे, 3 बार हो जाओगे, चौथी बार आप खुद ही गिव अप कर दोगे। तो आज तक जो मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसको मनाना बहुत अच्छे से आता है। दैट्स अ गुड थिंग, आई मस्ट। काफी तारीफ मिल गई, वो भी प्रूफ। हाँ, विद प्रूफ है कि हाँ, ये बाइट आप अलग से रख सकते बट हो। नहीं है। नहीं यार, पता है मेरा क्या मानना है ना, लोग अपनी फैमिली में जो होते हैं ना, वो बाहर नहीं होते। आप मेरे हिसाब से ना, एक आदमी रियल मैन की डेफिनेशन इज अबाउट हिज फैमिली, अबाउट हिज वाइफ, हिज सन, हिज मदर। दे आर दी वंस जिनके साथ ना ही शुड बी एट हिज बेस्ट। हम क्या करते हैं ना आज के टाइम में, लोग दिखावे के लिए दुनिया के सामने बहुत अच्छे होते हैं, और अपने घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट और ये सब वगैरह। तो आई रियली मतलब वो बहुत मुझे ना हिपोक्रेसी और ढोंग लगता है। जो मैं इनके साथ हूँ, मैं बाहर वैसा हूँ। मतलब आई विल नॉट से कि मैं इसको, और मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, अगर मुझे कुछ बुरा लगता है मैं क्या होता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं आपको डांटना गुस्सा, दिस हाउस इट इज नॉट अलाउड। हाँ, ये गुस्सा करती है, बट हाँ, मैं जब मुझे बोलेगा ना कि तुमने, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं, ये अच्छा लगा, तो पहले क्यों, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा? मैं इस टाइप की हूँ। मुझे 2 घंटे चाहिएंगे कि ये रियलाइज करने में कि नहीं यार, कभी कभी तो मैं भी तो सॉरी बोल सकती हूँ। नहीं, बट मैंने कभी सॉरी के लिए बोला नहीं है। हाँ, लेकिन 18 ईयर्स में आई हैव नेवर सेड कि तू सॉरी बोल, सॉरी मैं ही बोलूंगा, बट तू मान जा। हाँ, मुझे ना एक फर्स्ट टाइम में तो मुझे लगेगा चाहे मैं कितनी बड़ी गलती हो, बट अगर आते ना आपका बंदा आपको बोल रहा है कि तू गलत है, अच्छा मैं कैसे गलत हूँ? तू ही गलत है। वो वाला स्टोरी तो ये मैं इसको ना डेली बस पेशेंस सिखाता हूँ। हाँ, सब्र, लाइफ में ना सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब जैसे मैं जो ये एग्ज़ाम है, और जो भी लोग ना, मतलब बच्चों से भी मैं मिलता हूँ, सबको मैं कहता हूँ, इन योर लाइफ यू शुड बी वेरी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन होना चाहिए आपको ना। आप खा रहे हो, आप, मेरा खाना इज़ वेरी बोरिंग, रूटीन खाना। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इट इज़ वेरी बोरिंग, बट वो बोरिंग आपको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जो यूथ को समझना चाहिए कि आप 2 मिनट में बोर हो गए ना, तो आप ना वो चीज़ छोड़ देते हो करना, दैट इज़ रॉन्ग। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है, वो कैसा भी आपने करना है, और आप पेशेंट हो। आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है वो। आपको ये पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों थिंग्स अपने आप देख हो जाएगा। जैसे अभी गुस्सा है ना, तो अभी मनाऊंगा, ठीक हो जाएगी। कुछ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, आई विल बी पेशेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, मैं फेल हुआ, दोबारा से करेंगे ट्राई, फिर फेल हुआ, दोबारा ट्राई करेंगे। तो धीरे धीरे ना मेरे उसका सीखा कैसे, जितने आसानी से बोल रहे हो सर, ये इतना यार ये सीखा नहीं, ये मतलब ये 18-10-12 साल का एक वो है। नहीं, बट ये तो आपका पहले से एटीट्यूड होगा ना, कि जो आप कह रहे हो कि पेशेंस लाना, कि यूपीएससी और ये जर्नी ने सिखाया। यार बहुत सारे फैक्टर्स थे। शी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, माई पेरेंट्स आर वन ऑफ द फैक्टर्स। माई फादर, मतलब मेरे लिए माई फादर इज़ इंस्पिरेशन। Your father was he was into business, वो ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट और ये सब में थे। तो फॉर मी फादर एंड माई मदर, दे हैव लाइक, हमारे घर पे कभी भी ना किसी को डांटना, हाथ उठाना, दिस इज नेवर देयर, नेवर। तो इट इज़ लाइक कि आप ना, तो जो भी जिन फैमिलीज़ में ये सब प्रॉब्लम होती है ना, उसमें बच्चों पे बड़ा इफेक्ट होता है। तो वो पेरेंट्स को समझ होनी चाहिए कि आप, बच्चा जब आपका हो ना साथ में, यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से, बिकॉज आप जो बोलते हो उससे ज़्यादा होता है आप एग्जाम्पल क्या सेट करते हो। तो ऑल द पेरेंट्स शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर देयर चाइल्ड।
कि यार आप ना कि खुद क्या चीज़ कर रहे हो। अब मैं बेटे को बोलूँ, अब डेली मैं उसको कहता हूँ जिम जा, तो अब इट्स बीन मोर देन 1 to 2 years ही इज रेगुलर इन जिमनास्टिक, बिकॉज ही नोज मम्मी भी जिम जाती है, पापा भी जिम जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, दादी भी वॉक करती है, जो वो करते हैं वो करते हैं। तो हमारे घर में डिसिप्लिन एंड फिटनेस इज अ रूटीन। पढ़ाई में शी इज़ अ लेक्चरर, शी इज़ डूइंग PhD, अब डॉक्टरेट इनकी कंप्लीट हो रही है, आई एम इनटू सर्विसेज। तो ही नोज कि वी रियली वैल्यू एंड अप्रिशिएट पढ़ाई, स्टडीज़, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप, मेरे फादर साहब का बिजनेस था, बट तब भी मैंने ये सोचा हुआ था कि लाइफ में मैं जो करूँगा अपने पैरों पे करूँगा। मैं वो बिजनेस जो उनका है ना, आई विल नॉट टेक इट एज कि भाई मुझे, आई हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। आई फील एवरीथिंग, इवन अ रिलेशन और जॉब, एवरीथिंग हैज़ टू बी अर्नड। तो आपको कमाना पड़ता है एंड यू हैव टू वैल्यू दैट। जिस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करोगे, आप उस चीज़ को कभी ना लाइफ में, मतलब ना वो इज्जत दोगे नहीं। तो नेवर बी अ सिनिक हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको, जैसे मेरी जॉब है, मेरे रिलेशंस है, फैमिली है, ये लाइफ है, आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड। आई वैल्यू इट, आई वैल्यू एवरी डे ऑफ माई जॉब, आई वैल्यू एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद माई फैमिली। तो एवरीबडी शुड डू दैट, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। और पेशेंस आपको ना धीरे धीरे वो होती नहीं है, वो आपको खुद बनाना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है। यू ग्रो, यू नो, मैच्योर स्लोली विद लाइफ, विद टाइम। वो आप ना एक हैबिट होती है कि आप उसको बनाना पड़ता है। मतलब कुछ भी होता है ना, लोग आके गाली भी देते हैं तो आई एम नॉट, फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, नेवर बी, गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी नहीं। मतलब यार मुझे गुस्सा जब आएगा ना, तो वो गुस्सा मतलब शिव जी के तांडव वाला होगा। तो मुझे गुस्सा आना इज़ वेरी 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 बिग थिंग। तो मुझे नॉर्मली गुस्सा नहीं आता, बट जब आएगा तो वो बहुत बुरा आएगा। तो आई अवॉइड दैट कि वो फेज कभी आए ना। गुस्से में क्या होता है, शांत हो जाते हो? तो यार कुछ भी, मतलब आई एम लाइक वेरी वेरी साइलेंट। ओके, और सबसे खराब होता है बहुत ज़्यादा कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। कि फिर आई एम लाइक आउट ऑफ दैट थिंग कि यार दिस इज़ नॉट हाउ यू डू इट, और फिर मैं कुछ हो नहीं करता, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा वो बहुत गलत होगा। तो पेशेंस आए ना सर में, जो मुझे लगता है वो आए हैं क्योंकि सर ने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत टफ टाइम में हार्ड वर्क किया है। आपको पता नहीं कि डू एंड डाई सिचुएशन होती है जिसमें आपको लगता है कि अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं है। सर को ये चीज़ बहुत लगती थी कि कोई ये कह दे कि तुम ये जो भी हो मेरी वजह से हो। अब समझ रहे हो कि सर ने कुछ किया और उसमें किसी दूसरे बंदे ने कह दिया कि तुम जहाँ पे भी हो आज मेरी वजह से हो, तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने पैर पे जो करूँगा ना। कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिली थी, लेकिन आई वॉज इनटू हिज लाइफ। तो अगर ये वो गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं तो इनके फादर साहब जब मेरे से ये शादी की बात करते तो वो बोलते कि तुम्हारी नौकरी तो मैं लगवा रहा हूँ और तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे। तो मैंने नहीं लिया, जब तक ये, जबकि ये सिचुएशन कभी हुई ही भी नहीं है, ही इज इनटू हिज थॉट्स कि मेरे को ये चीज़ सुननी ही नहीं है। तो इन्होंने बिजनेस क्लास को छोड़ के तैयारी की और उस टाइम पे भी वो आई थिंक। अब सिंगल चाइल्ड हो अभी? हाँ, नहीं मेरे 2 सिस्टर्स हैं। ओके, 2 सिस्टर्स। तो एक बड़ा कॉमन सा फ्रेज़ है जैसे आजकल बहुत चलता है कि शाहरुख खान सबको पसंद है, बनते हुए शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद है। क्योंकि आपने जब इनको शादी किया था ही वॉज नथिंग, एज यू मैंशन, लाइक नथिंग इन द सेंस आप जैसे एक IAS ऑफिसर है, नथिंग मैं उसमें वैसे नहीं बोलना चाह रहा। सो वो बनते हुए शाहरुख खान को आपने देखा है, आपने बोला फिर इंटरकास्ट मैरिज, शादी के पहली बात घर पे उठाना कि यू नो हम आप दोनों शादी करना चाहते हो, वो बनते हुए शाहरुख खान वाला फेस कैसा था? वो हमारे लिए तो जब हम मिले थे ना, तो आई थिंक वेरी फर्स्ट डे मैंने सोच लिया था कि मतलब मैंने इसके साथ ही रहना है। लेकिन इसको मेरे साथ कैसे रहना ना, एक लड़की क्या सोच के ये सोचती है कि मुझे इसके साथ रहना, मतलब वो फीमेल माइंडसेट जानना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आई वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस लव मैरिजेस कॉन्सेप्ट, कि मेरी अपब्रिंगिंग में ही नहीं था और इट्स वेरी बैड थिंग। बट आप सोचो कि मेरी इतनी सालों की सोच को ऐसे बंदे ने मिटा दिया जो वैसा लुकता भी नहीं है जो मैं अपने सपनों में सोचती हूँ। अगर आप किसी से करोगे तो कम से कम 6 फीट लंबा चौड़ा, क्योंकि जाटों की तो यही एक होती है कि मतलब कुछ भी हो लंबा चौड़ा बंदा तो एटलीस्ट होना चाहिए। बट ही वॉज सो लीन। लेकिन जो मेरी जितनी भी गलत धारणाएं बोलूँगी मैं आपकी, कि अगर आपको सही बंदा मिल जाता है ना, तब आपको शायद पेरेंट्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंटरकास्ट मैरिज है या नहीं है। शायद मेरे पेरेंट्स इसी वजह से इस चीज़ के खिलाफ होंगे कि शायद उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि इंटरकास्ट कर लेते हैं लेकिन बंदा नहीं देखते हैं। तो जब मेरे फादर को मैंने बताया था अपने बारे में, तो मेरे फादर का सबसे पहला क्वेश्चन था
कोई जाट है तो बता। तो मैंने उनको बोला देखो जाट तो मैं उसको नहीं बना सकती, रहेगा तो वो पंजाबी, लेकिन उसमें आप कोई कमी निकाल दोगे ना तो मैं नहीं करूँगी उससे शादी। ये बात कब हो रही है? लाइक आफ्टर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इट इज़ ये तब थी जब हमारी शादी से 1 साल पहले की। पहले की बात। आफ्टर इंजीनियरिंग अब कितने साल में शादी हुई आप लोगों का? इंजीनियरिंग 2009 में ख़त्म हो गई, 2014 में शादी हुई, 5 साल में। उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? मैंने पहले ही कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। कॉल सेंटर? हाँ, कॉल सेंटर भी मैंने कौन सा कॉल सेंटर? भाई ऐसा है ना, मैंने मुझे आज तक याद है। फादर साहब से बोला था पापा मैं जो करूँगा खुद करूँगा, मैं आपका बिजनेस में नहीं आऊँगा। नहीं बट प्लेसमेंट्स हुआ होगा ना कुछ? प्लेसमेंट हुआ, मुझे मिली नहीं जॉब, वो ज्वाइनिंग। बट कॉलेज में आई थिंक ही इज द ओनली वन जिसकी प्लेसमेंट हुई थी पैरो में, पैरो सिस्टम और इन्फोसिस 2 में हुई थी। इन्फोसिस में दोनों में हुई। और हम लोगों का क्या था मैंने ना, join पूरा हमने आप कहते हैं ना पूरी शॉपिंग करते हो आप जब आपका प्लेसमेंट के लिए जाते हो ना, पूरा ब्लैक ट्राउजर व्हाइट शर्ट। अच्छा, वो सब हो गया? नहीं नहीं, वो सब नहीं। मैंने किया वो, मतलब मेरा उस टाइम पे सुनो। मैंने 9,000 रुपए खर्च कर दिए होंगे। ओके। और ये आते हैं बिल्कुल जीन्स में। जीन्स एकदम ना, और आई थिंक पिंक टी-शर्ट कलर की में। शर्ट थी और टाई भी किसी दोस्त से मांगी ऐसी, और आधी टक इन थी वो, आधी बाहर थी आधी अंदर थी, और इतना कैजुअली अंदर गया और इसका हो गया और हमारा नहीं हुआ। और मुझे यही चीज लग गई कि यार ये क्या हो गया। और इसकी एक फ्रेंड थी चांदनी, सॉरी टू मेंशन हर Don't name. नेम, बट वो बाहर आके क्या रो रही थी बताओ, इसका भी हो गया। क्योंकि इमेज ऐसी थी ना, बिकॉज ये वो सो कैजुअल कि आप लोग सोचते हैं कि प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके जाएंगे, इस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। ये ऐसे ही रैंडमली गए, मतलब कहीं जीन्स और आपकी शर्ट तो कहीं इसमें आती ही नहीं है, और टाई भी किसी दूर से फ्रेंड से मांग ली, और ऐसे लहराते हुए गए और जॉब लेके आ गए। और हम लोग इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, हम इन्होंने इंटरव्यू कॉल तक में भी नहीं बुलाया। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि इंटरव्यू में आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, वन इज ऑनेस्टी, अदर इज कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। और वो चीज़ें इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मतलब लाइक आई डोंट थिंक कि इन दोनों के अलावा अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, मैं आपको यूपीएससी का इंटरव्यू बताता हूँ, मेरा 50% ऑफ इंटरव्यू पता क्या था? सॉरी सर आई डोंट नो। है 50% ऑफ माई इंटरव्यू सॉरी सर आई डोंट नो, और ये लोग मानने को तैयार नहीं है। एक्चुअल में यही है। आज भी नहीं मानेंगे यार मैं झूठ क्यों बोलूँ? जो है सो है, मुझे जो आता है मैंने बोल दिया, जो नहीं आता मैंने सॉरी सर बोल दिया, और क्या बोलूँ? Why I have to be, मतलब मैं किससे डर रहा हूँ जो मैं झूठ बोलूँ? बट सर ऐसे बोलते हैं ना, बीइंग अ डिप्लोमेट यू हैव टू बी अ डिप्लोमेट। नहीं देखो, डिप्लोमेट होने, डिप्लोमेट मीन्स आप वर्ड्स को वो नहीं कर सकते, झूठ को सच नहीं बना सकते। डिप्लोमेट होता है जो सच को बहुत ही पोलाइट वे में बोले, मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब यू हैव बीइंग अ डिप्लोमेट, आपको सच को ना बस आपको एक लेयर में बना के सजाना होता है। डिप्लोमेट ये नहीं कहता कि आप झूठ बोल के कुछ भी चीज़ कर दोगे। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो सर कि मुझे इतना पता है, ये मैंने आपको बता दिया, जो मुझे नहीं आता मैंने नहीं बताया। सेम मेरे दोनों बाकी इंटरव्यूज़ में था। फिर जब मैंने अब कॉल सेंटर, देखो मेरा मेन क्या था ना कि मेरे फादर ने मेरी पढ़ाई तक के लिए बहुत खर्च दिया। ओके। इट वॉज पे बैक टाइम नाउ। मैंने ये चीज़ मन में सोची हुई थी कि मेरे को ना इनको प्राउड फील कराना लाइफ में ना, कि यार हमेशा से मैं बचपन से ये सुनता रहा कि जी ताया जी का बेटा ऐसा हो गया, वो यूएस चले गए, यूके चले गए, ये हो गए वो हो गए, सबकी कहानी। तो सबके वही। और फिर मेरे को किसी ने ऐसे बोल दिया कि यार इसके बस का तो कुछ नहीं है, कुछ लाइफ में बनेगा नहीं, तो दैट स्टेड इन माई माइंड, दैट स्टेड इन माई माइंड। और दूसरा क्या था कि इसको मैंने ये कमिट किया था कि यार यू हैव चोजन मी इन दिस लाइफ। तेरे को 2 चीज़ों की वो है ना कि एक तो मेरी फिटनेस के लिए भाई मैं अब तेरे को वो लगता हूँ, और एक तेरा कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, तू मेरे साथ लाइफ में रहेगी, आई विल गिव यू एवरीथिंग, जस्ट बी विद मी एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बी विद मी। तो मैंने उसको ये कमिट किया था कि हम दुनिया घूमेंगे, मैं जैसा तू चाहती है मैं वैसा ही बनूंगा, और जो जॉब चाहिए मैं वैसा भी करूंगा, जस्ट बी विद मी। सो शी वॉज देयर इन एवरी लो एंड हाई ऑफ माई लाइफ। और जो भी मैं आज हूँ, आई मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स, और उसमें जो इसका हाथ है, मतलब इनके अलावा मतलब ना, मतलब और अगर ये लोग मुझे नहीं सपोर्ट देते, स्पेशली इसने मुझे अगर रास्ता और वो नहीं दिखाया होता, तो आई वुडंट हैव बीन हियर। वो जो मैं अब कर रहा हूँ, मैं इसके लिए तो है कि भाई तुझे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई तेरा पति फिट नहीं है, कि तेरा पति एक अच्छे उसमें नहीं है। तो शी हैज़ टू, जो मैंने पहले दिन कमिट किया था, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे इन दैट कमिटमेंट। तो 18 साल पहले मैंने वही कमिट किया था। और डेडिकेशन की आप बात करो ना, तो इतनी डेडिकेशन है। हमारी लव मैरिज हुई थी, और हमारी लव मैरिज से 2 साल पहले की बात है, जब हमारे घर में बातचीत चल रही है शादी की, हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ही वॉज इन टू प्रिपरेशन।
हम बात नहीं करते थे, हम बात नहीं करते। इसने she was तो like- मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि भैया ये लव मैरिज ही है ना, क्योंकि लव मैरिज का मतलब होता है कि साथ कपड़े खरीदने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कुछ नहीं ऐसा हमारे उस साथ। टाइम पे एक तरह से आप अनएम्प्लॉयड हो। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, शादी होते ही फिर मेरा पहला शादी अटेम्प्ट क्लियर हो होती गया और ये अपना लाइब्रेरी में आ 13 गया। दिन के बाद ही शादी के जस्ट 13 दिन के बाद मैं लाइब्रेरी चला गया। ज्वाइन कर ली। सुबह 8 बजे घर से निकलना, रात को 11 बजे घर वापस आना। तो बेसिकली जब आपकी शादी हुई तब आप अनएम्प्लॉयड। आई वाज अनएम्प्लॉयड। तो ये आई टोल्ड हर, बोला नहीं घर वाले ने, क्योंकि इंडिया में तो वो होता है। हाँ बट बोला, वो सिर्फ but एक मेरे ट्रस्ट था father- जो इसने मुझ पे किया हुआ था। वो तो मेरा आपने ट्रस्ट इन पे किया था, है, बट मेरे फादर को ट्रस्ट ये था कि जैसे मैंने उनको बताया कि ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर, तो जो पापा के साथ इनको देखने गए थे वो बहुत कुछ बोल रहे थे Okay. पापा को ना कि आपकी तो इतनी अच्छी है, ये है, आप ऐसी जगह क्यों कर रहे हो शादी। तो पापा ने बोला देखो दोनों पढ़े लिखे हैं। मुझे इसलिए अपने पापा की इज्जत आज और भी ज़्यादा अपनी नज़रों में लगती है कि वरना वो चाहते तो बोल सकते हैं कि बच्चे मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ, हाँ। है ना। बट उन्होंने क्या बोला कि दोनों पढ़े लिखे बच्चे हैं, दोनों ने अपनी मर्ज़ी मुझे बताई है, मेरे से इजाज़त मांगी है। मुझे नहीं लगता कोई कमी है कि भाई ठीक है कास्ट का नहीं है तो कोई बात नहीं, बट मुझे कोई ऐसी कमी भी तो नज़र नहीं आ रही जिसमें मैं बोल दूँ नहीं मैं नहीं करूँगा शादी। और कल को बन गया ये IAS, तो तुम्हारे जैसे लोग ही आएंगे पूछते हुए कि फलाना जी आपका दामाद कहाँ है। और वो सेम चीज़ हुई जब ये IAS बने तो माई फादर वॉज क्राइंग फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनको शायद वो पुरानी बातें याद आ रही थी। आपने एक ही टाइम पे सेकेंड अटेम्प्ट में तो मेरे पापा ने फिर भंडारा किया था इनकी उसके लिए ना, कि मतलब दामादी बने, और बहुत प्राउडली सबको बोलते हैं। लेकिन उस चीज़ में मैं पीछे कहते हैं ना, आज मुझे लोग कह देते हैं जैसे आइस तो कोई भी शादी कर ले, मैंने आइस से शादी नहीं करी। शी वाज द वन जिसने एक IAS को चूज नहीं करा, मैंने IAS को इसने बनाया ऐसा आम आदमी को ही चूज किया था। But वो phase He कितना built था? that, she built that IAS। मतलब आपने शादी के कितने साल बाद बने? 2 साल बाद। तो वो 2 साल हाउ यूज्ड टू रन द फैमिली? मतलब शी यूज, हाँ मतलब From घर वाले का pocket है। money। मैं इससे पॉकेट मनी लेता था भाई, मेरे पैसे खत्म हो गए। मैं इसको बोलता था यार ये जॉब करती थी, अच्छा आप जॉब पे हाँ थे। तो मैंने इसको कहा यार मेरे ना मेरी जो सारी सेविंग्स हैं वो खत्म हो गई हैं, तो यार मुझे ना 200 रुपये दे दे, मेरे को आज चाय पीनी है, कुछ खाना है। तो मैं इससे लेके जाता था, पापा से मांगते मुझे शर्म आती थी कि यार अब इतना कमा रहे हैं। तो मैं इसको बोला यार तू आज मेरे को दे दे, और फिर जब मौका आएगा ना तो कुछ देखो यार हमारा लाइफ में ऐसा है ना, लव मैरिज थी। मैंने इसको ये बोल दिया था शादी से पहले कि यार तेरे घर से मुझे तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। आई मैंने जस्ट पूछ लिया ये, मैंने ना मेरी सिस्टर के कहने पे मैंने पूछ लिया कि जतिन तुम्हारी सैलरी कितनी है। ओह गॉड, मैं तो मुझे सैलरी पूछ सैलरी लिया यार। कितनी, मतलब तब तो जॉब ही नहीं करते। जॉब नहीं करते ना, बट घर वाले को तो आपको बताना पड़ेगा ना कि Okay. ही वाज इनटू बेसिल, Okay. ये विदाउट पे पे चल रहे थे वहाँ से ना। तो मेरी सिस्टर के कहने पे मैंने पूछ लिया किसी तरह हिम्मत करके, ये तो चढ़ गया मेरे ऊपर, तू मेरे से सैलरी किससे पूछ रही है, मतलब ये तुझे क्या कमी मैंने रखी है जो तू सैलरी पूछ रही है। फिर मैंने बहन को आके बताया कि यार ये फालतू बातें मत पूछो। फिर मेरी बहन कहती नहीं, उन्होंने गाड़ी का भी है, इकलौता लड़का है, पंजाबियों में तो चलता है, गाड़ी भी देंगे। तो फिर मैंने अगले दिन आके इसको फिर बोला, क्योंकि आई वाज द इंटरमीडिएटर ना, Okay. इसके साथ और मेरी फैमिली के साथ तो मैं ही कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैं ही आके बात रखूंगी। तो मैंने इसको बोला गाड़ी कौन सी चाहिए, तो फिर ये चढ़ गया मेरे ऊपर, गाड़ी चाहिए तो तू ही चाहिए थी, गाड़ी के लिए तो बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब गाड़ी ये फालतू की बातें नहीं है। तो फिर मैंने इसको अपनी बहन को बोला देख सच्चा प्यार था, सच्चा प्यार था, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यार मैं नहीं जो तो मैं जो मेरे जीवन Real में दिए ना, man। पापा ने पल्सर के पैसे, सेम पल्सर के पैसे ही दिए कि जो रिवाज है तुम्हारी वो करो, अदरवाइज मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बट एक चीज़ है पता है, सर को अभी देख के ना बहुत लोगों को लग सकता है कि उस टाइम पे शायद ही वाज वेरी फेमस, बहुत लड़कियां शायद। हाँ, अभी देख के लगते होंगे ना। नहीं तब भी, मतलब सोचो मैं दिल्ली में रह रही हूँ, हाँ। मेरे साथ मेरा बेटा भी है, और ये मेरे घर रिश्ते आ रहे हैं और उनके लिए दरवाजा मैं ही खोल रही हूँ, ठीक है। और मैं पूछती हूँ हाँ जी जतिन लाल का घर है, मैंने कहा हाँ जी जतिन लाल का घर है, मैंने कहा बताओ, कहते उनके लिए ना रिश्ता आया। और मेरे को ना ऐसे खुन्नस कि मतलब चिढ़ होने लगी थी मुझे ना, कि मतलब तुम्हें दिखता नहीं मैं उसकी बीवी और ये इसका बच्चा, हाँ। तो कहते नहीं फिर भी आप देख लेते, वो ऐसी बात है। और फिर पीछे से मेरे फादर इन लॉ आए, उन्होंने बोला तेरा दिमाग खराब है, समझ नहीं आ रहा, ये मेरी बहू है और ये मेरा पोता। तो मुझे वो इसलिए बहुत अच्छे लगता है, वरना क्या होता है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा बेटा तो यार IAS बन गया है, अब तो पता नहीं हमने गलत जल्दी शादी कर दी, इसको तो पता नहीं क्या मिलना था, क्योंकि इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं। तो ही वॉज देयर एज अ पिलर फॉर मी। हाँ मेरा फादर इन लॉ इज लाइक फैब। तो पीछे से आगे बोलते तेरा दिमाग खराब है, दिख नहीं रहा मेरी बहू है, मेरा पोता खड़ा हुआ है साथ में। तो अपन उनको इतनी पंजाबी में गालियां दी ना, वो फिर वापस भाग गए वहाँ से। बहुत रिश्ते आए, फिर मैं जतिन को बहुत इनसिक्योरिटीज नहीं आई? इनसिक्योरिटीज तब मुझे हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस टाइम पे मैं इसको बोलती थी, हर कोई बताता है ना कि मतलब मैं शादी, तुम पहले दिन जाके बोलो
तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा भी नहीं, मैं हर जगह पहले बोलता है मैं मैरिड हूँ भाई, मैं पहले लेकिन मैरिड। इस चीज़ का भी एक गलत वो हुआ था हमारी लापसना में, जब ये वर्ल्ड ट्रेनिंग ना, तब भी वहाँ पे जाट जो IAS हैं सारे एंटी हो वो गए। एंटी हो गए सब, क्योंकि आपने जाटों की लड़की से शादी करी। मतलब आप सोचो जितनी बड़ी हाई पोस्ट भी है ना, तो जो कास्टिज्म है, मेंटालिटी, ये मेंटालिटी, इससे उभर पाना ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े लेवल पे पहुंच के भी वो इस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और मेरे फादर एक 10th पास हैं, दिल्ली पुलिस में सिपाही रहे, अभी वो रिटायर हुए एज ए सब इंस्पेक्टर। उनकी मेंटालिटी सब पढ़े लिखों से बहुत ऊपर है। मेरे फादर इन लॉ की मेंटालिटी इज लाइक अमेजिंग, बहुत इस ही चीज़ को अगर वो चाहते, क्योंकि उनका ये था कि आज भी वो बोल देंगे ना, तो पूरी फैमिली के लिए ना है। बट उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया कि नहीं, दोनों बच्चों ने पूछा है, मेरे से इजाज़त मांगी है, तो मैं क्यों करूँ। और कल को बन गया वो वाला डायलॉग उनको याद है, तो वो उसी प्राउड में रहते हैं आज तक। मतलब इतनी खुशी मुझे लगता है किसी और को जतिन के IAS में जिंदा रहना इतना आसान भी नहीं है। जैसे उस टाइम पे ना आप तो थे ही, बट पूरे परिवार एक होप में था कि एक दिन बन गया। वो होप इस कंधे पे थी, तो पूछो इससे कितना प्रेशर था। वही और फर्स्ट टाइम जब फेलियर हुआ, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर नहीं किया, सारे होप खत्म हो गया। थोड़े टाइम के लिए भी तो होता ही है इंसान। बट ही वाज सो डेडिकेटेड ना। आप सोचो हमारी लव मैरिज हुई है, और मेरे को तो पूरा ये ना अपनी ख्वाबों में ही थी मैं, मेरी तो लव मैरिज हुई है, क्योंकि खानदान की पहली लड़की हूँ, उसकी अपनी पसंद से लड़का चुना है। तो मैं फुल मेकअप एकदम ऐसे पूरा चूड़ा वूड़ा पहन के एकदम मतलब हीरोइन बन के घर से निकलती थी, और ये बिल्कुल ऐसी फटी हुई सी कैप्री, फटी हुई टी-शर्ट, और ये सुबह 8 बजे पढ़ने चला जाता है लाइब्रेरी में। और मेरे को लगता है यार हमारी लव मैरिज हुई, अब तो हमें साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये मुझे कहता नहीं, तू साथ में भी मेट्रो में जाएगी, तू मेरे को डिस्टर्ब करेगी, तुम अपना अलग देखो, मैं अपना अलग देखूंगा। तो फिर को बहुत ऐसे लगता था कि यार मेरे को मिलना है भाई, पति हो तुम हमारे, मतलब जाना तो पड़ेगा ना ऐसे। मैं कहाँ था वो, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र। मैं वहाँ चली गई एक बार ना ऐसे सरप्राइज देने के लिए, फुल अपना न्यूली वेड के गेटअप में। और ये बिल्कुल ऐसे तो जो लोगों की नज़र थी ना, उससे मैं खुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है इसके साथ, कि मैं इतना बंधन के आई हुई हूँ, इसकी कहीं और शादी हो गई है और ये अपने आशिक से मिलने आई है। और जिस रेस्टोरेंट में हम बैठ के खाना खा रहे थे, वो मुझे उस नज़र से देख रहा है ना, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे वैसे ही सोच रहा है। मैंने इसको बोला, उसको जाके बता किया कि हम मैरिड हैं तो मेरा पति है। फिर जैसे ने उसको बोला कि भाई तेरी भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती, इसलिए हम आते हैं। तब उसकी नज़रों में वो जो फेयर है वो मुझे समझ में आया, तो फिर मैंने बिल्कुल ही कट कर दिया। और मेरे वहाँ तो क्या था कि जो पति होता है वो लेने आता है लड़की को मायके से। पहले आप चले जाते हो, भाई लेने आता है ससुराल से, और पति लेने आता है मायके से वापस ससुराल में। ये किसी को दिखाई नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ 8-9 बजे सो जाते हैं, ये 11 बजे लाइब्रेरी से आता है, फिर थोड़ा तैयार भी होगा मुझे लेके आने के लिए, तो 12 बजे तक मेरे घर पहुँच जाए। तो हमारे वहाँ तो खूब रूमर था कि करण सिंह की लड़की ने कर ली लव मैरिज, इंटरकास्ट कर ली, पर उसका तो टूट गया रिश्ता, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं। अच्छा, तो बहुत सोशल वो था। मतलब आप सोचो ना, अगर इन चीज़ों को अपने दिल पे लगा लिया तो नहीं टिक पाते हम। पूरे मूवी स्क्रिप्ट दे दिया आज मैं। हाँ, मतलब हम लेकिन इस चीज़ से ना बहुत ऊपर रहे, हमें इस चीज़ से कोई मतलब हमने अब हमारी मैरिज से ना वी हैव ट्राइड टू ब्रेक मैनी जो होते हैं ना माइंडसेट। कोई अगर ऐसे फेस से जा रहा हो ना कोई कपल, वो बहुत रिलेट करेगा। हाँ, मतलब ये यार देखो, हमारा क्या है ना, इंटरकास्ट कोई हम लाइफ में ना, हम जैसे कि आप कोई एक दूसरे से वो नहीं, अनएम्प्लॉयड हैं और शादी कर रहे हैं, शादी करें, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बहन की बहुत अच्छे घर में शादी। कभी एक बार भी फील नहीं है मतलब आपको भी कि मतलब पैसे को, क्योंकि एक वो फ्रेज है सर, आपने भी सुना होगा कि व्हेन पॉवर्टी कम लव गोज आउट ऑफ द विंडो। नहीं यार, वी हैव सीन वेरी लोज, बहुत लोज देखे हमने लाइफ में ना, तो अब फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब यार मैं क्या मानता हूँ, मतलब हम दोनों ही मानते हैं कि वी आर नॉट वेरी underwhelmed with having nothing and we are not very overwhelmed with having everything। मतलब अब ये लाइफस्टाइल भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि यार ये परमानेंट है। मैंने इसको कल ही बोला था, मैंने कहा पता नहीं कितने टाइम तक रहेंगे यहाँ, फिर जहाँ चल जाएगी किस नसीब। एंजॉय करना है लाइफ को, आपको एक एक दिन एंजॉय करना है। आपको लग्जरी चीज़ों से चाहिए नहीं होता है। हम तो किस चीज़ में एंजॉय, मतलब गाना चला लिया, वही गाना लगातार चल रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वी फाइंड हैप्पीनेस इन वेरी 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 स्मॉल थिंग्स। हमें बड़ी चीज़ में फर्क नहीं, हमें कंपनी मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोला, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक सीनियर ऑफिसर्स के साथ जब मैं कर रहा था पॉडकास्ट, तो उन्होंने बोला कि दिस न्यू बीस शुड लर्न वन थिंग, कि ट्रांसफर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, इट इज इंटरेस्टिंग। मतलब लोग उसको लेके फेज में चला जाता है, लाइक इस सर्विस में नेचुरली होता है,
भाई बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो प्रॉपर पोस्टिंग ना जो जहाँ ट्रांसफ़र, जहाँ नसीब में जहाँ की रोटी लिखी है चल पड़ो। हमने एक बहुत कुछ देखा यार। हम इंदौरा से लेकर हम कहाँ कांगड़ा गए, शिमला में गए। मेरे फादर का वी हैव बैटल्ड हिज कैंसर फॉर 1 ईयर 2023 में। तो दिल्ली शिमला। तो शी वॉज द वन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। मैं यहाँ पे था तो शी वॉज द वन टेकिंग केयर। मैं ट्रेनिंग पे था हर जगह, इसने ही सब कुछ देखा है, सब संभाला है। तो इट इज़ लाइक कि म्यूचुअली जो मतलब ना हम एक दूसरे की बात काटते नहीं है कि हाँ यार तूने बोला है, कुछ सोच के तूने बोला है तो मैंने जो बोला है, शी रिस्पेक्ट्स दैट, वट एवर शी सेज आई रिस्पेक्ट दैट। इट इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन अ रिलेशन। इट इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाह रहे हो, इफ़ यू हैव दैट पर्सन विद यू, आप यू कैन अचीव लाइक स्काई इज द लिमिट। पर्सनल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पर्सनल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं खराब हो ही जाती है। या तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप सिंगल ही हो, आप लाइफ में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आप पहले ही करियर सेट कर लेते हो। तो फिर वो लेकिन वो करियर के बाद का फेज जो होता है ना, वो ट्रस्ट किस पे करे, कौन लाइफ में किस उससे आया है, आपको पता नहीं होता ना। बट हमने तो जैसे मेरे दोस्त आई हैव चाइल्डहुड फ्रेंड्स विद मी टिल नाउ। मतलब 26 ईयर्स की दोस्ती हम अभी तक निभाते हैं। और चाहे बात महीनों तक बात ना हो, बट जब बात होगी तो वो बात ऐसे होगी जैसे स्कूल में होती थी। तो मेरे स्कूल के दोस्त आज तक, हमारे कॉलेज के सारा कॉलेज का हम 6 लोग हैं, 6 के 6 ने शादी नहीं करी, सबने अरेंज लव मैरिज। तो ये पंजाबी है, मतलब हमने ना एक वो ये से हिमाचल से ही, उसने सरदार से शादी करके बैठ गया। मतलब उल्टे चल रहे हैं सब ना। मतलब मेरे सारे दोस्तों की ना सबकी इंटरकास्ट लव मैरिज है। मेरी दोनों सिस्टर की लव मैरिज है। सब मस्त है, चल इस चीज सब एंजॉय करते हैं उस चीज। और हम तो ये बोलते ही नहीं कि कास्ट कोई चीज होती है। कास्ट कोई चीज नहीं होती। मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करती कि कास्ट कोई चीज होती है। आपको बंदा पसंद आना चाहिए या किसी को बंदी पसंद इंसान की पहचान उसकी जात से नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको माइंडसेट तोड़ना चाहिए। और हम यही कोशिश करते हैं एज अ कपल कि लोगों तक ये पॉजिटिव मैसेज जाए, फिटनेस को लेके, एज अ कपल को लेके, प्राइवेट लाइफ को लेके, और आपके जो बैकवर्ड माइंडसेट्स हैं उनको लेकर कि ना दिस इज हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है हर चीज़ में, चाहे वो शादी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी आपकी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो। अगर आप पहले से प्री प्लान जो चीज़ें हैं, जो माइंडसेट, उन्हीं पे चलोगे तो शायद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन एक एज पे आने के बाद। तो हमने स्टार्टिंग से हमारे दिमाग में ये चीज़ें थी ही नहीं, तो शायद इसी का असर हमारे पेरेंट्स पे भी हुआ कि अगर हम आजा ब्राउनी, आजा या बेबी ब्राउनी, आजा 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 आजा। चलाते कभी कभार निकालते हो उसको? हाँ यार चलता है। तो आई लव राइडिंग। फर्स्ट बाइक नहीं, फर्स्ट तो नहीं लग रहा है। बाइक्स आती नहीं यार। फर्स्ट कौन सी बाइक होगी? स्प्लेंडर, पल्सर? भाई मैंने एक्चुअली मेरे फादर साहब को बाइक्स इतनी पसंद नहीं थी, मुझे बहुत पहले उन्होंने गाड़ी दे दी थी। अच्छा। तो मैंने तो फर्स्ट मेरे एक फ्रेंड की हार्ले चलाई थी, एक उसमें मैंने बुलेट चलाई थी एक बारी, वो बहुत कॉलेज में चलाई थी। हाँ हाँ। उसके बाद एक फ्रेंड की थी हार्ले चलाई थी। हाँ। और फिर उसके बाद फिर एक और यही थी रॉयल एनफील्ड ही चलाई थी। मतलब ये है मैं खुद का ये पहला? ये मेरी नहीं है। अच्छा आपके? मेरी नहीं है, फ्रेंड्स की है। मतलब मैं ज़रूरत नहीं पड़ी कभी लेने की। मतलब ऐसे लॉन्ग ड्राइव वगैरह नहीं जाते? बाइक राइड्स वगैरह? मैं और रेनू वहाँ जाते हैं। अच्छा। हिमाचल में कहाँ गए? हिमाचल में पूरा कांगड़ा मैंने घुमा है। तब आप पोस्टेड थे ना? पोस्टेड था SDM। तो ओके। बाइक पे मैंने फर्स्ट पोस्टिंग होगी? कांगड़ा में 3 साल रहा हूँ। 3 साल। BDO रहा था इंदौरा। ओके। फिर उसके बाद मतलब प्रोबेशन भी वहीं थी पहले, फिर ओके। BDO, फिर SDM कांगड़ा। अच्छा। वहीं पे जब कांगड़ा में था तो आई हैड अ बाइक विद मी। हाँ। तो पूरा कांगड़ा मंडी साइड पूरा मैंने उसी पे घुमा था। सर अभी तक जितने हम बातें कर रहे थे ना आपकी ज़िंदगी का, कि वो मैरिज फेज, ऑफिसर बनना, उसके बीच में मुझे तो लगा आप इतने सारे के बीच में ख्वाब देख ही नहीं पाए होंगे कि एक दिन मैं DC बनूंगा तो ऐसे ऐसे करूँगा, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होगा लाइफ में यार। मतलब आप इतना सोचते नहीं हो कि ये होगा तो क्या होगा। हाँ। यू जस्ट लिव इन दी मोमेंट। हाँ। आपको ना ऐसे नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत माइंड में रहता है कि आपको ना ड्राइव करने के लिए कि एक दिन मैं ऐसा कुछ करूँगा। क्या सोचा था, क्या करूँ? कि मतलब हाँ यार DC बनेंगे और अच्छा। तो बच्चों वाले सोच आए थे कि अरे DC बनूंगा तो मैं ही जिला का राजा बनूंगा, ऐसे वाले? नहीं राजा तो चलो क्या है। नहीं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम तो रियलिटी आपको पता है सारी चीज़। मतलब डियर
आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आप राजा ज़्यादा यू आर अ सर्वेंट, हाँ। आप यू आर अ पब्लिक सर्वेंट एंड पीपल डिपेंड ऑन यू, हाँ। पीपल हैव फेथ इन योर ऑफिस एज अ इंस्टीट्यूशन, जो इतने 250 साल पुराना ऑफिस है डीसी का। ब्यूटीफुल ऑफिस। तो इट इज़ लाइक कि जो ये ऑफिस जब बना गया था ना, इट वाज टू इंश्योर कि लोगों का फेथ इस ऑफिस पे बना रहे। तो आपके जो गवर्नमेंट है आपको इंश्योर करना है एक एक स्कीम वो सबसे आखिरी आदमी तक, औरत तक पहुँचे कि जो उसको डिज़र्व करते हैं, जैसे नोबडी इज़ लेफ्ट बिहाइंड। दिस शुड बी और लाइक आप एज एन ऑफिसर आपके गोल ये होना चाहिए। बाकी तो जो चीज़ें आती है इट इज़ द पर्क्स दैट कम अलॉन्ग। आप कंफर्टेबल होते हो तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। अगर आप कंफर्टेबल, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि एज ए ऑफिस ऑफ डीसी आपको पूरी पर्क्स प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो उस चीज़ का आपको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोगों की सेवा में आप कर सको, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी आइडियलिस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी जो एज अ डीसी है, अगर आप ये नहीं कर पाते तो देन यू आर नॉट अ गुड डीसी। अगर आप लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा पाते और पीपल डोंट फील गुड अबाउट यू बीइंग देयर डीसी, तो वो फील गुड बहुत ज़रूरी है। लोगों को फेथ होना चाहिए, वो ना आपको जब तक प्यार मिलना चाहिए। और जब आप यहाँ से जाओ, मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि आई लीव अ लेगेसी, कि लोग याद रखें कि हाँ भाई जतिन लाल नाम का कोई था जो ऐसा काम करता था। और अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि मैं अगर कुछ कर पा रहा हूँ लोगों के लिए। ये जो आप थॉट की बात कर रहे हो ना, एग्जीक्यूशन लेवल पे आता है द मेन लीडरशिप वाला गेम एज अ डीसी। ऑब्वियसली एज अ डीसी हर जगह तो आप पहुंचते नहीं हो, आपकी आदमी पहुंचता है। जी। वो कितना टाइम लगता है उसको समझने में? और क्योंकि सर वो चीज़ एक देखो, एक सरकारी में ना एक लेमन कॉन्सेप्ट है, सरकारी ऑफिस में तो काम आसानी से होगा ही नहीं, हर लेजी है। मैं किसी को डिमेंड नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉमन पीपल लैंग्वेज जो मैं अब तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। उस फैक्टर को कैसे लाते हो? नहीं यार, वो उसके लिए जो आपको एज एन ऑफिसर प्रिपेयर करता है ना, जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो ना, वो उसी टाइम से वो फेज शुरू हो जाता है। अच्छा। जब मैंने आपको पहले बताया था ना, पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, जब आपने ये सब चीज़ें समझ ली ना, तो उसके बाद एज एन ऑफिसर यू कैन मोल्ड योर सेल्फ इन टू दैट। ओके। तो आपको ये पता है कि यार कुछ भी प्रॉब्लम हो, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रही है, यू हैव टू बी पेशेंट। लोग आपके पास आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, और दे हैव दैट उनको वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन पे अगर आप नहीं कर पा रहे तो दे हैव दैट दैट एंगर विद देम, दे हैव दैट एक्सपेक्टेशन विद देम। और तो उनके टाइम आपको उनके लिए फिर यू हैव टू बी वेरी काम एंड पेशेंट टू हियर देम, यू हैव टू बी वेरी लाइक पोलाइट विद देम। और देखो, काम सारे ना भी हो पाए, लोगों को आपने अच्छे से ट्रीट कर दिया, उनको अच्छे से आपने उनकी बात को सुन लिया और उसके लिए आपने एफर्ट लेकर कुछ फील्ड पे कर दिया जो आप बेस्ट कर सको विद इन योर लिमिट्स। तो दिस इज़ लाइक आई फील एज एन ऑफिसर, आप दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू कैन डू। और बाकी क्या है कि जैसे मेरे ऑफिसर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो भी स्टाफ है यहाँ पे, अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करते हो, यू हैव टू बी एग्जाम्पल। मतलब यार, आपके ऑफिस में कोई आए और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा स्टाफ भी नहीं करेगा। तो आपको एग्जाम्पल खुद सेट करना है हर चीज़ के लिए। तो बीइंग अ डीसी आपको वो दिल जितना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे। यार देखो, दिस कई जगह पे दिस ऑफिस इट बियर्स लाइक ना, एक वो फियर वाला फैक्टर होता है, बट वो फैक्टर होना नहीं चाहिए आपका ना, दैट केयर फैक्टर शुड बी देयर। पर आपको दूर से देख के फियर वाला फैक्टर लगेगा। दूर से तो लोग कहेंगे हाँ भाई डीसी है, कोई कुछ ऐसा हो, ड्यू टू योर अटायर एंड एवरीथिंग। बट जब आपके क्लोज जाते हैं फिर लगता है कि यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, आपके अंदर एक वो बचपना भी है। बचपना तो भाई कभी मरना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आपके ना, एक बड़ा अच्छा सा एक शेर है कि फ़कत बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब। अब मैं अपनी ना जो है यार, मेरे माइंड से निकल रहा पूरा, फ़कत बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, कुछ नादानियाँ किया करो जमा रहने के लिए। तो नादानियाँ और बचपन है ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना इंसान ज़बरदस्ती जिंदा है। तो आप हमेशा ऐसे ही रहो, बट इट इज़ लाइक कि किस माहौल में, किस जगह पे आपको कैसा रहना है, वो मैटर करता है। व्हेन इट इज़ बट आपके अंदर का जो बच्चा है वो कभी नहीं मरना चाहिए, वो हमेशा रहना। एक लास्ट क्वेश्चन, अब मुझे पता है आपको ऑफिस जाना है, इससे क्या करना, तो सनलाइट अच्छा आ रहा है ना, तो जैसे आपने अभी बचपना की बात किया है, एक हमारे अंदर ना एक लौंडे वाले इंस्टिंक्ट होते हैं, हम कितने भी बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर एक लौंडा होता ही है।
जब कई कबार इट्स जैसे मुझे लगता है ना सर, आप लोगों के सर्विस में इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग। जब आप जैसे ऑफिस, मैंने देखा है आप लोगों को कि जब तक यहाँ हो ना, आपके अंदर वो शायद लौंडे वाले हरकतें या वो बचपन अभी तक था, द टाइम यू स्टेप इन, मैंने देखा है कैरेक्टर बदल जाता है इंसान का। वो एकदम से जैसे रोल स्विच होता है मूवीज़ में, वो कैसे होता है उसको? नहीं, करना पड़ता है यार। देखो आप, मैंने आपको बताया ना, देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हिच यू हैव टू डील एवरी डे। अब आपके लोग हैं, जैसे मेरे ऊना के लोग हैं, वो परेशान हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो इफ़ आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट स्टैंडिंग विद देम, तो फिर तो क्या ही, मतलब एज अ डीसी मेरा क्या ही रोल है। एवरीथिंग एल्स इज लाइक यूजलेस है। तो आपको, जब आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू स्टैंड। और आपको हर चीज़ में जो है, या तो आपका स्टाफ वहाँ होना चाहिए, और अगर ऐसा इशू है जो वो मैनेज नहीं करे, तो आपको होना चाहिए। तो वो चीज़ आपकी एज अ डीसी यू हैव टू इंश्योर। आपसे बहुत तरह के लोग मिलने आते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज पीपल। एंड इस चीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट्स अ बिग थिंग। तो मतलब आपको समझना है कि सामने वाला किस तरह के, किस मूड में, किस एक तरीके में बात कर रहा है, किस लेवल पे बात कर रहा है, तो यू हैव टू मैच दैट लेवल। वो होता है ना पेरेंट, अडल्ट, चाइल्ड, ईगो, देयर आर 3 फेजेस। तो आप जब पेरेंट ईगो में कोई बात करें, तो यू हैव टू बी वेरी देयर, यू हैव टू शो दैट केयर। कोई आपसे अडल्ट से एक ईगो से बात कर रहा है, जो आपसे ना एक एक्सपेक्टेशन में बात कर रहा है, तो यू हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। कोई आपसे बचपन में आके बात कर रहा है, तो आपको उसी तरह से विद दैट स्माइल ही आपने उसको ट्रीट करना है। तो यू हैव टू स्विच रोल्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल इंटेलिजेंस से बड़ा और इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आई फील के EQ इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। नॉलेज का होना एक अलग बात है, लेकिन विजडम का और इमोशनली इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है। आपने ना ग्राउंड में काफ़ी काम किया है, आपकी बातों से पता चलता है। तो यार मुझे कनेक्ट करते हो ग्राउंड लोगों से, और बिल्कुल ना, आप जब तक ग्रास रूट पे जाके एकदम हर उस बंदे के माइंड को नहीं समझोगे ना, तब तक यू कैन नॉट फील देयर लाइक what they are feeling. You have to step into their shoes. तो वो जो एम्पैथी अगर आपकी है ना, वो कंपैशन आप में है, तो आप खुद सोचोगे कि यार वो किस दौर से गुजर रहा है। अगर आप उस चीज़ को समझ लोगे ना, then you will make the right decision for that person. But sometimes you become sad for people या sad for situations. बहुत बार आप शायद वो चीज़ नहीं कर पाते हो लोगों के लिए। बहुत लोग ज़िंदगी में नाराज़ तो होंगे, चाहे आज हो या आपकी पूरे सर्विस में। हमेशा, मतलब I cannot make everybody happy. मैं कर भी नहीं पाऊंगा, सबको खुश नहीं कर पाऊंगा। नाराज़गी आता है उसमें। कई बार मुझे ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जिसमें चाहे वो किसी के लिए अच्छी हो, पर आई बिकम द विलन इन देयर लाइफ। कि मुझे पता है कि यार, चाहे वो किसी भी रिलेशन में कोई भी हो, मेरी फैमिली में भी हो, किसी में भी हो, मुझे पता है कि किसी के लिए एक चीज़ अच्छी है, वो ज़रूरी है, बट इन दी शॉर्ट टर्म और टेम्पररीली आई विल बी द विलन फॉर देम, बट इन दी लॉन्ग टर्म दे विल अंडरस्टैंड कि जो मैंने किया वो उनकी भलाई के लिए किया है। तो दैट इज व्हाट। तो आपको ना वो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपको समझना पड़ता है कि आप जो कर रहे हो अभी के लिए, चाहे वो बुरा हो, बट बाद के लिए। अब मैं कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक बाईपास बनाना है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे फैमिली, मेरी वाइफ के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, बेटे के लिए मैं बेटे को डांट रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, अभी के लिए मैं उसके लिए बुरा बन रहा हूँ, बट आगे के लिए आई नो कि यार ये उसके लिए अच्छा है, तो टेम्परेली मैं उसकी नज़र में विलन ही ठीक हूँ। अब लोगों के लिए मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो वो कहेंगे यार ये कर दिया, हमें उजाड़ दिया, ऐसे किया, बट अल्टीमेटली जब वो चीज़ आएगी और जब सब चीज़ें ठीक होंगी, तो यू हैव टू हैव दैट लॉन्ग टर्म विजन। वो आपको लॉन्ग टर्म समझना पड़ेगा कि किसके लिए क्या अच्छा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेस्ट ही होगा, बट मेरी ओपिनियन में जो चीज़ ठीक है, आई ट्राई टू डू दैट।
Like after the whole day, you're finished your office. हम अभी भी आपको तंग कर रहे हैं. नहीं please. My pleasure. So we visited 2-3 places. एक आपने बताया कि you were creating a gym, and that's the focus I think mostly for the people from the BPL people we can say, or with a low pay scale people, right? So that everybody can afford. And also you took us to the ground. अगर उसके बारे में आप यू कैन गिव अस एन आइडिया. नहीं यार, एक्चुअल में क्या था कि व्हेन आई जॉइंड हियर इन ऊना, तो लाइक आई फेल्ट वेरी बैड रिगार्डिंग द प्रेवलेंस ऑफ ड्रग्स हियर. ओके. तो मैंने यही सोचा था कि वी हैव टू डू समथिंग ऑन यू नो ensuring that the youth has some direction. तो उसके लिए फिर मैंने जो एक सामर्थ्य मैंने आपको बताया ना स्कीम हमने जो शुरू किया है, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही एक इनिशिएटिव था हमारा. तो उसमें मैं क्या कोशिश करता था कि जैसे CSR में और इधर उधर से जहाँ से मुझे फंड्स मैं अरेंज कर पाऊँ, तो उससे हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जिम्स, रीडिंग रूम्स बना रहे हैं. और इसके अलावा जैसे हमारे जो आर्ट कल्चर है उसके लिए हम काफ़ी सारे फेस्ट्स, जो रीडिंग रूम्स आज देखा है वो भी उसका पार्ट है. मतलब काफ़ी सारे हम मतलब 1-2 रीडिंग रूम्स आज जो हमने देखे थे, दे आर जस्ट वन ऑफ दोज. ओके. तो जैसे मेरे 5 ब्लॉक्स हैं, तो हर ब्लॉक में एटलीस्ट 10 रीडिंग रूम्स हों. और 1-2 अच्छे जो इंटरनेशनल लेवल टाइप्स के जिम हम बना पाएँ. तो अब ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ फंड्स मैं कितने बना पाता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन दी लाइक हाउ मेनी यू नो लाइक फंड्स आई हैव. बट ये है कि मेरी कोशिश है, तो ये जो मैंने आज आपको दिखाए, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम सामर्थ्य. तो इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया, हमने चिंतपूर्णी महोत्सव कराया. एक हमारे यहाँ हरोली उत्सव होता है. एक हमारे यहाँ पे पीपली जो है, पीपलू का मेला है, वो होता है. वो कहाँ पर होता है? ये हमारे बंगाना सब डिवीज़न में होता है. एक हमारा शिवबाड़ी का फेस्ट होता है गगरेड में. तो इसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हिमाचली आर्टिस्ट्स हैं उनको हम मौका देते हैं, एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है. एक प्लेटफॉर्म मिलता है. डांस प्रमोट करते हैं, आर्ट प्रमोट करते हैं, सिंगिंग प्रमोट करते हैं, उनको एक स्टेज देने की कोशिश करते हैं. और ये सब इसीलिए ताकि हम बच्चों को ड्रग्स से दूर करके अपने जो धरोहर है, हमारी आर्ट है, कल्चर है, क्राफ्ट्स है, और हमारे जो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, तो रीडिंग रूम में मैक्सिमम इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ताकि बच्चों को एक जगह मिले जहाँ पे वो पीसफुली पढ़ाई कर सकें. क्योंकि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि एक लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है. और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मतलब बहुत नॉमिनल प्राइस जस्ट टू मेंटेन इट. तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उनको AC वगैरह लगा दिया, वाईफाई लगा दिया, ताकि दे आर कंफर्टेबल देयर, और उनको ना घर के बाहर एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिले जहाँ पे वो पढ़ाई कर सकें. और जहाँ बात आती है जिम्स की, तो हम काफ़ी सारे मैंने ओपन जिम्स तो बन ही रहे हैं, बट इसके अलावा जो यूथ के लिए जो प्रॉपर जिम्स होते हैं हमारा उसके ऊपर फोकस है.
तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने ज़्यादा हम बना पाएँ उसको हम बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे इसमें जो हमारी बच्चियां हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस रहता है। राइट नाउ मोर देन 60 गर्ल्स पूरे ऊना डिस्ट्रिक्ट में हैं जिनकी हायर एजुकेशन हम स्पॉन्सर कर रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी से, इसी सामर्थ्य में। तो जितनी भी समर्थ इज अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम? नहीं, इट इज माय डिस्ट्रिक्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। व्हेन आई केम आई स्टार्टेड इट इन द वही समर्थ नाम आपने लाया? हाँ, मैंने ही सामर्थ्य अच्छा, खुद ही सोच के। मैं एक्चुअली मैंने समर्थन करके ना आई वाज एडीसी मंडी, तो वहाँ पे शुरू किया था यूपीएससी कोचिंग के लिए। ओके। तो राइट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग लाइक आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो एंड आई आल्सो प्रोवाइड यूपीएससी कोचिंग टू अराउंड 700 स्टूडेंट्स। यही मतलब नहीं, पूरे हिमाचल, दिल्ली, जो भी बच्चे जिनको लगता है कि इफ़ आई कैन हेल्प देम आउट, तो वो शुरू वहाँ से किया था मैंने। तो मंथली व्हाट आई डू, आई विजिट कॉलेजेस, आई डू काउंसलिंग, आई डू करियर के लिए लोगों को अवेयर करना और उनको यूपीएससी के बारे में बताना, करियर की मोटिवेशन देना और उनके डाउट्स को क्लियर करना। उनको जो इतना टाइम मिल जाता है, बहुत स्ट्रेटेजिक चीज़ है। मतलब कोशिश करते हैं जितना जब भी टाइम मिले, तो आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन एंड यूथ एंड यंग, जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना और उनको एक थोड़ा डायरेक्शन देना। तो अभी के लिए जो स्टार्ट हमने किया था, तो गर्ल्स को नीट की कोचिंग आई एम स्पॉन्सरिंग, उनको क्लैट की कोचिंग आई एम स्पॉन्सरिंग, यूपीएससी की कोचिंग, सबको मतलब आई हैव अलॉटेड अ फिक्स्ड अमाउंट कि आपकी फीस को मैं स्पॉन्सर पूरा करूंगा, कुछ अमाउंट आप अभी देंगे, बाद में वो भी मैं रिइंबर्स कर दूंगा। तो उससे क्या होता है कि वो उनको एक ऐसा ना हो कि हमारे जो जिनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके इनकम सर्टिफिकेट हम लेते हैं, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि जिसके फादर या तो 40% से ऊपर डिसेबल्ड है या नहीं है, जो फादरलेस गर्ल्स हैं और जिनकी इनकम एक अमाउंट से नीचे है, तो वो सर्टिफिकेट के बेस पे हम उनकी पूरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट से ही अपनी रेड क्रॉस जो समर्थ्य की जो सोसाइटी हमारी है उसमें से हम इसको वो कर देते हैं, मतलब रीइंबर्स कर देते हैं। और हमारी जो जैसे किसी बच्चियों की मैरिज होती है तो उसके लिए भी आई गिव सम ग्रांट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। और उसके अलावा जैसे किसी के मेडिकल बिल्स वगैरह हैं तो वी स्पॉन्सर देम। और जैसे हमारे ना वो हमारी लाइवलीहुड के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इकट्ठा करके उनके प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट करते हैं ताकि उनकी लाइवलीहुड में अच्छा एक वो आ सके। तो अभी इसके ऊपर हम एक काम कर रहे हैं, ऊना का हम एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो वो कैसा ब्रांड? मतलब जैसे ना हम कुछ प्रोडक्ट्स को बनाएंगे और हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उससे हम एक फेडरेशन बनाएंगे, एक कोऑपरेटिव, जैसे अमूल कोऑपरेटिव, वो बहुत हाई लेवल है, तो हम एक छोटा ही बनाएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का। उसमें हम उन प्रोडक्ट्स को या तो प्रोसेस करके भी, रॉ भी, और कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके उसको सेल आउट करेंगे। अच्छा। तो वो भी हमारा एक कोशिश है। यहाँ पे हमने फार्मर्स के लिए अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे ब्लूबेरी, एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट्स उगा रहे हैं। एवोकाडो होते हैं यार? मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम कर सके लाइवलीहुड के लिए। तो दिस सामर्थ्य जो हमने शुरू किया ना, इट हैज़ मेनी विंग्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं या सेक्टर्स हैं। तो उसमें से कुछ है कंपटीशन है, कुछ हमारे जो जैसे रीडिंग रूम्स वगैरह आ गए, कुछ फिटनेस है तो जिम्स वगैरह आ गए उसमें, कुछ हमारे लाइवलीहुड है, कुछ आर्ट एंड कल्चर है। तो ये सब चीज़ों को मिला के भी एक होलिस्टिक हमने प्रोग्राम बनाया ताकि डिस्ट्रिक्ट के जो लोगों को हम एक अच्छा जो है उनको ड्रग्स से दूर करके और अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे सकें और यूथ को एक डायरेक्शन दे सकें। और सारे ऑफिसर्स को हम जो है, यही मैं बोलता हूँ कि आप स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ और वहाँ पे जाके उनको बच्चों को थोड़ा सा ना यू गिव देम थोड़ी गाइडेंस दो, उनको मोटिवेट करो, उनको ना एक डायरेक्शन दिखाओ। आपके होने से ही बच्चों में थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो यू हैव टू डू दैट। मतलब मैं वही मानता हूँ ना, वी शुड लाइक aspire to inspire before we expire. So we should try to inspire people with like what we have learned from our mistakes. We give them a good opportunity. और मतलब यार आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ें तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम कितना ही क्या कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज चेंज पीपल्स माइंडसेट टू गिव देम अ गुड पॉजिटिविटी और उनको एक अच्छा जो है ना लाइफ के बारे में एक अच्छी अप्रोच दें ताकि वो ऐसा ना हो कि अपनी लाइफ के जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है उसको मतलब वेस्ट ना करें। तो दिस इज़ आर लाइक लिटिल व्हाट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसमें कुछ कर सकें। और बाकी तो काम वगैरह तो सब चलता ही रहता है, बट एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डीसी पीपल लुक अप टू यू। तो यू शुड लाइक
जो भी मैंने आपको पहले बताया था, एक एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ता है। अब मैं जिम बना रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि भाई मैं भी उस चीज़ का एक फिटनेस का एक एग्जाम्पल एक रखूँ। आई प्रमोट हेल्दी डाइट, तो मैं खुद भी हेल्दी डाइट अपनी भी एक मेंटेन करूँ। और आपको मतलब सिंस आई हैव क्लियर्ड एन एग्जाम, जो मैंने खुद रीडिंग रूम में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के क्लियर किया है, तो बच्चों के लिए भी एक ये है कि आप ये करो। तो मतलब मैं ये मानता हूँ यार कि अगर मेरे जैसा एक, आई हैव ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट, तो अगर मैं एक एग्जाम क्लियर करके ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो कोई भी, एनीबडी कैन बी एन IAS, एनीबडी कैन बिकम एनीथिंग व्हाट दे वांट, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो आप कुछ भी कर सकते हो, और उसी में हमारा एक थोड़ा सा ये प्रयास है बस। सो आप बेसिकली जैसे बोला सर, यू कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड। ओके, आई डोंट थिंक आपके फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं है। तो जैसे आपने एक और चीज़ अभी कुछ देर पहले बोला ना कि यू आर ट्राइंग टू गिव मनी, जिनके शादियों में अगर किसी को पैसे चाहिए, एडुकेशन में पैसे चाहिए। एक मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ को, शायद आप भी रिलेट करेंगे, कि हम जो लोग आम जनता होते हैं ना, 90% टाइम कई कबार हमारे पास ये चीज़ें पहुंचते नहीं है। मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, शायद मैं जहाँ रहता हूँ मेरे DC सर भी कुछ कर रहा होगा, बट मेरे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन, है ना। मैं बट आजकल बाहर जब घूमता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, तब पता चलता है कि इसका एक क्या सोल्यूशन होगा सर। कि अगर जैसे मेरे जैसा कोई बंदा, जिसको मान लो कोई आइडिया नहीं है, आई स्टे इन ऊना, मुझे अप्रोच करना आपको, क्योंकि एक चीज़ सर हम मानते हैं, चाहे इसको कितना भी डिनाई करे, रीचिंग अ DC इज एवरी टाइम नॉट ईजी, क्योंकि कुछ लेयर्स होते हैं, एंड उस लेयर्स में सरकारी सिस्टम में एवरीबडी इज नॉट हेल्पफुल। कुछ लोग टाल देते हैं, कुछ हमारे वो सब जगह ही है, मैं सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडियन सिस्टम, उस जगह पे आप क्या गाइड करोगे? कोई बच्चा अगर सिंपल, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आज लॉ पढ़ना है, इफ़ आई वॉन्ट टू अप्रोच यू, describing the pan India system, what should be my strategy to reach you? As such, I don't think यार, अब थोड़ा सा times have changed, थोड़ा जो accessibility है, स्पेशली हिमाचल को अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ तो मतलब हमारे ऑनरेबल CM साहब हैं, उनको अप्रोच करना मुश्किल नहीं है, ही इज सो एक्सेसिबल ना। और मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एवरीबडी इज एक्सेसिबल। तो एज अ DC, लाइक एवरीबडी इज अलाउड कि मेरे ऑफिस में आप कभी भी आओ, कुछ भी है आप बताओ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल अदर मीन्स ऑल्सो। जब भी हमने स्कीम्स लॉन्च करी थी, हमने पूरा मीडिया में इसका एक वो दिया था, पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ SOP सब कुछ हमने प्रॉपर एक एडवर्टाइज करा था कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट ने ये स्कीम शुरू करी है। ठीक है। तो उससे क्या लोगों तक पहुंचा। उसके बाद सोशल मीडिया हैज़ बीन अ बून। तो उसमें मेरा जो हम अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू पेज है, तो DC ऊना का मैंने शुरू किया था पेज, वो नाउ एवरीबॉडी आपने शुरू किया। मैंने स्टडी करा पहले उसको, मतलब वो एक इलेक्शन का पेज था, तो 100-200 फॉलोअर्स होते थे, स्वीप वाला पेज, स्वीप का एक पेज होता था। तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से छोड़ो, मैंने कहा यार 100-200 फॉलोअर है ना, इसी से ही मैं पर्सनल पेज तो मेरा है, मैं इस पेज से मैं जो स्कीम्स और बेनिफिट्स और लोगों तक जो पहुंचाना है, और जो काम एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैं कर रहा हूँ, और क्या क्या हम किन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो मिस ऑन इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। इन्फॉर्मेशन नहीं होना इज बेटर, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना इज रॉन्ग। तो हमेशा वो बहुत ही डेंजरस होती है। तो फिर मैंने खुद ही अपना पेज स्टार्ट किया, मेरे पूरी टीम लगाई उसमें, तो वो पूरी टीम उस पेज को मैनेज करती है और पूरा उसको देखती है, और पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब दैट पेज इज द फर्स्ट थिंग जो पूरे ऊना में अगर कुछ है तो वहाँ पे आप देखो, इट इज़ ऑथेंटिक। तो वो कोई डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो स्कीम्स के बारे में लोगों तक पूरा वो, अब इतने उस पे मैसेजेस आते हैं, मतलब आई थिंक आजकल तो सर आप लोग पर्सनल लेवल पे भी रिप्लाई कर देते हो। हाँ यार, मतलब अगर ऐसा लगे, मतलब कोई अगर रैंडम उस पे DC ऊना में तो बहुत ज़्यादा मैसेज है, मैं देख लेता हूँ, बट सब पे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पर्सनल पे बहुत मैसेज आते हैं, वो रिप्लाई करना, बट स्टिल आई ट्राई, जब टाइम हो तो, जेन्युइनिटी जब जेन्युइन कोई हो मैटर, तो आई लाइक टेक दैट मैटर एंड सेंड इट टू माई टीम, तो वो आगे जो उसको सॉल्व कर लेते हैं। बट कभी इतना, मतलब कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, इतने सारे मैसेज और वो देखना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता है, बट स्टिल आई ट्राई कि जब टाइम मिले उसको
मतलब ऑल द जो प्रॉब्लम्स लोग उसमें डालते हैं ना दे आर सॉर्टेड आउट, तो उसका ट्राई। बाकी यहाँ लोगों से भी, पंचायत से हमारा बहुत वो रहता है, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, पंचायत के प्रधान हैं, पटवारी है, हमारा जो भी फील्ड लेवल जो फंक्शनरीज हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, दे नो अबाउट आवर स्कीम्स। तो उनको मैं बुला के एक वर्कशॉप करके उनको लोगों तक बोलता हूँ कि भाई कोई भी है जिस बच्ची के फादर नहीं है या वो डिसेबल्ड है और जिनकी इनकम इस क्राइटेरिया से नीचे है, तो उस तक आप ये स्कीम्स के बेनिफिट पहुँचाओ। इसके अलावा भी जैसे स्टेट की हमारी बहुत अच्छी जो स्कीम्स हैं यहाँ पे, जैसे हमारे स्टेट ने जो उनके लिए सुख आश्रय जो स्कीम शुरू किया, उसमें ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट्स हैं, विमेन के लिए जो बेनिफिट्स हैं, जिनको नहीं पता, तो हमारी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारी ड्यूटी यही होती है टू मेक श्योर कि बेनिफिट ऑफ ऑल द स्कीम्स रीचेस टू द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट लास्ट पर्सन वी रीच, एंड जो सबसे जो डाउन ट्रॉडन है उस तक हमारा स्कीम का बेनिफिट पहुँचे। तो वही हम कोशिश करते हैं थ्रू वेरियस मीन्स, और सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ देम, मीडिया इज़ वन ऑफ देम, आवर फंक्शनरीज आर वन ऑफ देम। हम जैसे हेल्थ के, हम एड्स को लेकर और आपके टीबी को लेकर जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है। टीबी है अभी भी यहाँ पे? नहीं, थोड़ा तो मतलब पूरी तरह तो इरेडिकेट नहीं होता है टीबी, तो अभी यहाँ तो प्रेवलेंट है काफ़ी हमारे जैसे केसेस, बट उनको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके जो है ट्रीटमेंट का कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम इंश्योर करते हैं। तो दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए डीसी, वो हमने करना है। लॉ एंड ऑर्डर ये सब तो बाकी तो चलता ही रहता है कि आपके जो भी, चलो उसके लिए एवरीथिंग वी हैव अ डिपार्टमेंट है। पुलिसिंग का है कि ड्रग्स वगैरह को लेकर दें, इंश्योर कि जो है जो सप्लाई डिमांड चैनल है उसको हम रोक सकें, और भी जितने क्राइम्स हमारे यहाँ, जैसे अब हमारी कोशिश रहती है कि माइनिंग वगैरह उसको भी हम पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कोई इलीगल उसमें माइनिंग ना हो। और जैसे हमारे यहाँ रोड सेफ्टी वगैरह के लिए काफ़ी, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल, तो यहाँ पे थोड़ा जो ट्रैफिक है उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ता है कि ओवर स्पीडिंग और इस सबसे कुछ इश्यूज़ ना हो, तो वो लॉ एंड ऑर्डर और ये सब हमें मैनेज करना पड़ता है। बाकी तो मतलब एज सच ऊना इज़ अ वेरी लाइक वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट, पीसफुल है। थोड़ा बहुत तो मतलब इश्यूज़ तो हैं, सिंस इट इज़ बॉर्डरिंग पंजाब, तो वो थोड़ा सा मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है पंजाब और इधर, तो उसके लिए पुलिसिंग में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो वो हम कोशिश करते हैं जितना हम मैनेज कर सकें। सर 38 साल की ज़िंदगी में, आई थिंक 38 ईयर्स में, क्या लगता है आज जब पीछे मुड़ के देखते हो, कॉल सेंटर, अनएम्प्लॉयमेंट, शादी, फादर बनना, डीसी बनना, डेस्टिनी और मिरेकल? मिरेकल भी, इफ यू वर्क हार्ड तो मिरेकल्स तो हो ही जाता है। होपलेस बने इस पूरे फेज में कभी कई अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं यार, बट होपलेस तो एकदम ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं। मतलब खुद को होता है ना कई बार यार, मतलब मेरे कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, पता नहीं क्या होगा। मोमेंट्स आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस, मोमेंट्स आते हैं, बट यही मोमेंट्स हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज जो मतलब ना वट एवर आई एम टुडे, कि ना जो जैसे आप बात कर रहे थे कि भाई आई एम ट्राइंग टू बी नो, कि कोई भी चीज़ ऐसे एकदम मुझे वो नहीं कर देती कि मैं एकदम परेशान नहीं हो जाता, या वो प्रेशर काफी चिल आउट है, मैं देख रहा हूं चिल आउट रहने का ना, वो जब आप इतना कुछ देख चुके होते हैं ना लाइफ में, तो वो लाइफ आपको चिल आउट बना देती है। वो देख कर भी आपने देखा ना कि मैंने ये फेज भी देख लिया, फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स आई तब भी यार सब ठीक हो ही गया। मेरे फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ था वे बैक इन 2008, मतलब आई लिटरली लाइक आई फेल्ट कि आई लॉस्ट हिम, मतलब इतना बुरा उनकी एक्सीडेंट हुआ, बट उस फेज से भी हम बाहर आ गए। आप क्या कर रहे थे उस टाइम? मैं कॉलेज में था यार। अच्छा। मेरा 2nd 3rd ईयर था, और रेनू मेरे साथ ही थी। हम तो मतलब लाइक मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि वो टाइम ऐसा था कि यू वोंट बिलीव कि यार मतलब मुझे ट्रीटमेंट के लिए मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। ऐसा टाइम भी मैंने देखा था, बिकॉज वो कॉन्शियस नहीं और मुझे इतना कुछ चीज़ें पता नहीं है। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ यार कि आई हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल नाउ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम समझ में आई कि यार फादर के बाद में तो कुछ हुआ ही नहीं, आई एम नोबडी, आई एम नथिंग। तो वो फादर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो चीज़ मुझे तब समझ में आई कि नहीं, आपको मतलब यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आपको किसी भी चीज़ के लिए आप तैयार हो। तो उसके बाद मैंने फिर दैट वाज द टाइम जब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो जो भी करना है अभी करना है। तो फिर आप जब ये सब मुझे एक डायरेक्शन मिली और वो जो पैशन हो गया ना कि हाँ भाई अब करना है, तो मेन यही था कि यार
जो लाइफ में कि आई हैव टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तो भाई उनको एक जो प्राउड वाली फीलिंग है ना, वो तब नहीं आएगी अगर मैंने जैसे कुछ भी ऐसा किया कि जैसे उनके बिजनेस में ही आ गया मैं, या जो मेरी नॉर्मल रूटीन जॉब्स हैं वो चल रहा है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके फादर बिजनेस करते थे जी। बहुत सारे लोग आपकी ये चीज़ सुनने के बाद लगेंगे कि ऑलरेडी घर तो फाइनेंशियली स्ट्रांग था। जी जी बिल्कुल, है ना। तो आपने बोला ना पैसा ये वो, मतलब खुद से करना था मुझे कि मैंने क्या कमाया है। अच्छा, मतलब बिजनेस तो है ही, वो तो चलो उन्होंने कमाया है ना। तो अभी वो बिजनेस अभी चल रहा है। आई एम अच्छा, आप देखते हो। मेरे मतलब मदर के उस पे हमने कर दिया है। ठीक है। मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उसको संभाल लेते हैं। और मेन क्या होता है कि यार आपको ना एक और मेरी लाइफ का जो बड़ा होता है ना कि जैसे आप कहते हो ना कि नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, कि जैसे हम हमेशा हमें हमारे पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। हाँ। कि भाई ये इनका बेटा है। तो मैं लाइफ में कुछ ऐसा चाहता था करना ना कि मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से जाना जाए। हाँ। कि यार ये उसके फादर हैं या इसकी मदर है। तो मैं हमेशा से ना मैं यही सोचता था कि ऐसा क्या करूँ मैं, मतलब ऐसा कौन सा एक वो चीज़ है ना कि जिससे मतलब आई एम एबल टू गिव देम देयर ड्रीम लाइफ एंड आई एम एबल टू। और लाइफ में ना आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एक इंसान की कामयाबी में जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो उसके फादर और मदर ही होते हैं। हाँ। तो अगर आप उनसे ज़्यादा कामयाब होते हो ना तो दे आर दी वंस हु विल बी द मोस्ट हैप्पी। बाकी और किसी से आप ज़्यादा कामयाब हो, आई डोंट नो उनकी क्या रिएक्शन क्या होगी, बट ये फॉर श्योर है कि आपके फादर और मदर हमेशा खुश होंगे जब आप उनका बच्चा उनसे ज़्यादा कुछ कर पाता है लाइफ में। मैं उनसे ज़्यादा कभी कर नहीं पाऊंगा, मैं अभी भी कुछ कर रहा हूँ, उनसे आगे कभी भी नहीं हो, बट मेरा एक ये था कि मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ कि उनको फील हो कि हाँ यार मेरा बेटा जो है लायक था, उसने कुछ अपने दम पर अपने पैरों पे कुछ अचीव करा। बस इतना मेरी एक इंटेंशन थी। और मतलब उनके तो मैं जो है ना बाल जितना भी बन जाऊँ तो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो भी मैंने सीखा है वट एवर आई एम मैंने उनसे ही सीखा है। तो इफ़ लाइक ही हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड ऑलवेज यू नो बस मोटिवेट ही करना, कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं कि कभी नेगेटिविटी या कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा पापा ये करना, उन्होंने कहा करो, पापा ऐसे करना, हाँ करो, ये करना, हाँ करो। तो हर चीज़ ही वाज वेरी एवरी टाइम सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। मतलब जैसे वो कहते हैं ना लाइफ में कि इफ़ यू वांट टू बी समथिंग बी एन एनकरेजर, बिकॉज दिस वर्ल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑलरेडी। तो वो चीज़ वो मानते थे कि भाई बुराई तो हर कोई कर ही रहा है, तो अगर आपने किसी को करना ही है तो एनकरेज करो। तो मैं भी अपनी लाइफ में जैसे वाइफ कुछ कर रही है, बेटा कुछ कर रहा है, आई ऑलवेज से यार जो तुम्हारा मन है ना करो, दिल से करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे करो। यू हैव एंटायर फ्रीडम। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीडम। आप कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो ना, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं। जो रहना चाहता है ना वो रहता है, जो जाना चाहता है वो जाता है। तो आप जो भी करो, मेरे फादर को पता था इसने पढ़ना है, इसने करना है, इसने लव मैरिज करी है, जो भी करा है, he always gave me that freedom to choose कि यार तेरी चॉइस है, कभी कोई बंदिश नहीं है किसी भी चीज़ की। हमारे घर में मतलब बंदिश किसी पे नहीं रखी गई, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मुझ पे, सिस्टर्स पे, किसी पे भी। तो वो चीज़ ना एक अगर आप पॉजिटिवली लेते हो सकता है कि किसी को आप फ्रीडम देते हो तो वो गलत भी ले जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उस फ्रीडम को कितना रिस्पेक्ट देते हो। तो अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आप लाइफ में अच्छा भी कर सकते हो, नहीं दोगे तो आप कुछ भी बन सकते हो। लास्ट 2 सवाल ख़त्म करूँगा। जैसे लोगों को पता है कि डीसी है, इतना कुछ है, इतनी जगह आपने घुमा, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे आपने काम किया है। लास्ट सुबह से कल से मैं जब मिला हूँ, इवन दिस बंगलो क्वाइट अ बिग वन, आप पूरे दिन सिर्फ उतना सा जगह पे रहते हो। अगर हम दिखा सकते हैं दैट इज़ योर फेवरेट प्लेस। मैं सुबह भी जब हम मिले थे यू वर सिटिंग देयर जी, अभी हम भी जब वापस आए यू वर सिटिंग देयर जी जी, है ना। एक लाइन है सर, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, शाहरुख खान कहते हैं कि जब व्हेन यू रीच द टॉप ना द ऑल फाइट इज इन द ग्राउंड, व्हेन यू रीच द टॉप यू आर अलोन एंड वहाँ ना लड़ाई नहीं है, बिल्कुल आप अपने आप से जूझते हो। वहाँ बैठ के वो महसूस होता है। नहीं यार, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना रिक्वायरमेंट सिर्फ उतने की है, बाकी सब तो पॉम्प एंड शो है।
मतलब इसीलिए हमें एक इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इतना ही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी फैमिली साथ बैठती है, हम जब भी बैठते हैं, और बेटे के साथ में बैठता हूँ, गेम वेम खेल लिया, टीवी देखा, पेट्स के साथ एंजॉय कर लिया। आई थिंक कि इससे ज़्यादा लाइफ में ना कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है। दिस इज माई लाइक जो था ना पीस, दिस इज माई काम। सुबह उठता हूँ, यहाँ ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस गए, ऑफिस का पूरा हो गया, वापस आया, यहीं पे बैठे और अपना एंजॉय किया फैमिली के साथ, फिर गए, फिर ऑफिस का बाकी काम किया, वापस आए अपना यहाँ पे। मतलब पूरे ये बंगलों में शायद आप आई प्रेफर दिस, मतलब यहाँ हम खेलते हैं, ठीक है, आई लव प्लेइंग टेबल टेनिस एंड पूल और ये सब हम एंजॉय करते हैं, और यहाँ बैठते हैं तो अपना ऊनो खेलते हैं और टीवी देखते हैं और गाने सुनते हैं। मतलब म्यूजिक इज लाइक लाइफ। तो पूरा दिन मतलब कुछ ना कुछ म्यूजिक चलता रहे, अपना टीवी चलता रहे, एंजॉय करे, गप्पे मारे। तो दिस इज लाइक, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना रिक्वायरमेंट इतनी होती है, बाकी सब जो है वो सोसाइटी के लिए है। कि भाई ये डीसी का बंगला है, इतने कमरे हैं, इतना बड़ा घर है, गार्डन है, आपको रिक्वायरमेंट इतनी है। मैं एज अ बैचलर भी ना, जब शुरू से भी जो मेरा रूम होगा या कुछ होगा ना, उसका एक कोना होगा, मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। ऐसा नहीं, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव लाइक दूसरे कल्चर्स को देखना, और एज अ फूडी मुझे हर तरह की कुजीन को ट्राई करना। तो मैंने इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स कवर किया, ऑलमोस्ट मतलब वर्ल्ड की काफ़ी सिटीज़ को मैंने घूमा है। और वही मेरी कोशिश है कि आप जितना ज़्यादा मतलब ना टाइम मतलब जो है इस नॉलेज को और ये कल्चर्स को और इस सब को एंजॉय करो, तो उतना कम है। तो मेरी कोशिश इतनी रहती है। बाकी मतलब ऐसा कोई मुझे बहुत लग्जरी चीज़ें दे डोंट अट्रैक्ट मी कि बहुत लग्जरी चाहिए, ऐसा चाहिए। मतलब सिंपल कपड़े, आई एम ओके, आई एम हैप्पी विद दैट, और अपना सिंपल उसमें रहो। ये भी 200 वाली टी शर्ट है। हाँ, 200-300 से ऊपर नहीं हो गया, तो उसमें क्या मतलब क्या फर्क पड़ रहा है। और हम खुद बता रही थी कि आई स्टिल वेयर 50 रुपीज शॉप, जो मैं भूल गया, आई थिंक सरोजिनी मार्केट। हाँ बिल्कुल, 100 रुपए का। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अबाउट हाउ यू कैरी। वो आपके एटीट्यूड से होता है कि आप कैसे कैरी करते हो। कैरी करने वाला 100 की चीज को भी 10,000 की बना देगा, जो कैरी नहीं करने वाला 10,000 की भी 100 की लगेगी। तो आपके ऊपर है। और मैं एक और ये भी चीज मानता हूँ कि a fit body always is far better than a very luxury car or a bungalow or anything, because this shows your discipline कि आप कितना मतलब अपनी बॉडी को एज अ टेम्पल मानते हो ना। तो व्हाट यू पुट इनटू इट, हाउ यू स्पेंड योर टाइम। और आप में जैसे हम यहाँ बैठते हैं, रीडिंग करते हैं, और कुछ हम साथ बैठ के चारों एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो दिस गिव्स अ गुड मेंटल एक अच्छा वो रहता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है। आई होप नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूं आई बिकम मोर फिट। नहीं, आप अभी भी फिट हो भाई, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आपके सामने तो बिल्कुल नहीं। लास्ट क्वेश्चन, रैपिंग अप, it's a self-obsessed question कि like what made you say yes to the podcast, like what's your study, because the reason sir, आप लोग दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, है ना, आप लोगों का एक अलग स्टडी होता है, आप जब किसी को भी देखते हो एक अलग फीस रीडिंग होता है। so like what will be your study or what will be your feedback for me, him? जो आप कह रहे हो ना, मुझे ह्यूमन बिहेवियर, नेचर और ये सब ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब जो भी मुझसे मिलने आता है ना, आई लाइक ऑब्जर्व देयर, कैसे क्या, व्हाट आर दे डूइंग, एंड वो माइंड अपने आप चलता है, मैं नहीं वो करता हूँ। तो जब भी कोई कुछ बोलता करता है ना, माई माइंड इज ऑलवेज एनालाइजिंग कि क्या बोलना है, किस सेंस में बोल रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, व्हाट इज द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ सेइंग दिस। तो अब क्या था जब मैंने अप्रोच किया था? नहीं ऐसा यार कुछ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होता है। नहीं तो आपने भी कभी पूछा? यार आपने कैंडिडली पूछा कि भाई ऐसे करना है, और मैंने देखा आपके पेज में आपने काफ़ी सारे ऑफिसर्स का ये है, तो मुझे लगा कि यार मतलब व्हाई नॉट, उसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। आप चाह रहे हो तो इट इज़ ऑलवेज इजी सेइंग नो, बट आई थिंक सेइंग यस ओपन्स अप a new dimension to something कि आपसे मैं कुछ सीख रहा हूँ। मतलब यार मैं तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, आपसे सीखा, इनसे सीखा, सबसे सीख रहा हूँ। तो लाइफ में ना ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कभी ये नहीं मानना होता कि भाई मुझे सब आता है। और ऐसा नहीं, और भी मेरे पॉडकास्ट कई लोगों ने जो यहाँ से भी हैं, पहले भी सबने किया है, तो मैंने कहा इट्स ओके यार, मुझे अगर आप सच में आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ, एक्चुअल में आपका मुझसे पूछना, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपने मुझे इस लायक समझा कि आप
मेरे बारे में जानना चाहते हो। और मतलब ये नहीं है कि भाई मैं IAS तो बहुत है यार, आप किसी का भी कर सकते हो, आपने मुझे इस लायक समझा उसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। और आप जानना चाह रहे हो मेरी लाइफ के बारे में और यू नो मेरे जो दिनचर्या है मेरी उसके बारे में, तो मेरे लिए इट इज़ अ प्लेजर एंड आई डोंट माइंड कि अगर मैं आपसे, क्योंकि वही है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो समझता है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, और सबसे इंटेलिजेंट वो होता है जो ये समझता है कि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मेरे पास आपसे सीखने का, दुनिया से सीखने का ऑप्शन ओपन है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ मुझे सब नहीं आता है। अब आपसे आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ, आपके बारे में आप कर रहे हो, तो आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ। जो भी मुझसे मिलने आता है मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ, एंड ऑलवेज आई कीप दैट थिंग ओपन टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। मैं सीधा ही किसी को उसके मतलब आई डोंट जज अ पर्सन बाय देयर यू नो कि दिखने में कैसा है या क्या है, उसकी बातें, उसकी नॉलेज, दैट इज़ व्हाट यू नो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू एनालाइज कि यार क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या, ये नहीं कि जस्ट सुना और छोड़ दिया। तो उनसे भी कई बार मेरे यहाँ से ना ऐसे लोग, कई बुजुर्ग आते हैं जो अपने लाइफ के किस्से बताते हैं। अब आई एम वेरी लकी कि ना लोग आते हैं ना तो मुझसे अपनी लाइफ बहुत शेयर करने लग जाते हैं, तो दे टेल अबाउट देयर बैक, पूरा हिस्ट्री बताते हैं, अपना वो बताते हैं। तो मैं आई ट्राई टू बी वेरी पेशेंट एंड आई लिसन कामली। तो कोई लोग, कुछ बच्चे आते हैं ऐसे ही मिलने आएंगे रैंडमली, तो बताते हैं कि सर आपको पता है ऐसे हुआ, कॉलेज में ये था, हम ये करना चाह रहे थे पर ऐसे करा, फिर मेरे घर पे ऐसे होता था पर ये होता था, तो हम भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप कैसे बताओ। तो वो ना सुन के बड़ा अच्छा सा एक फील होता है। मतलब स्ट्रेंजर्स दे मीट एंड दे फील कंफर्टेबल कि वो मुझसे अपनी लाइफ को शेयर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट नॉलेज फ्रॉम देम। तो वही आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे बढ़ो और अच्छा के जो चैनल है ग्रो करें, और आप ना ऐसे आप सबसे इंटरव्यू लें, सबकी नॉलेज एक दूसरे को जैसे आप लोगों तक पहुंचाएं मैसेज, और कुछ कोई हम मेरे से कुछ सीख पाए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, तो आई विल बी लाइक आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो बस मैंने एक चीज़ सीखा है आज सुबह जब आप निकल रहे थे ना, आप निकलते वक्त अपने मम्मी को प्रणाम किया एंड देन यू वेंट। जी। वो एक चीज़ मैंने आपसे सीखा। मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया, बट कहीं ना कहीं हमने ना अपने रिचुअल्स भूल चुके हैं। नहीं यार देखो, मैं आपको एक बड़ी समझाता हूँ। डेली व्हेन यू लीव योर हाउस, व्हेन यू कम बैक, मेरी हैबिट बहुत कई सालों से है, आई ऑलवेज लाइक पेरेंट्स को फीट टच करना। कुछ चीज़ हम कैमरा में मिस कर जाता है, बट वो मैं पर्सनल लेवल पे मुझे मौका मिलता है। नहीं, वाइफ से, बेटे से आई ऑलवेज मीट, आई ग्रीट देम सुबह उठते ही, और अपने पेरेंट्स को भी। मतलब यार देखो, कई बार ऐसा होता है कि मैं मंदिर जाऊँ ना जाऊँ, बट ये है कि जो मेरे घर के लोग हैं ना, आई फील कि उनके साथ थोड़ा एक कनेक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्ट रहता रहना चाहिए। उनको वो रिस्पेक्ट में कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं जाते मतलब मदर से मिलते ही जाता हूँ, वाइफ से मिल के जाता हूँ, उनके साथ बेटे से मिल के जाता हूँ। तो ये सम थिंग्स लाइक दे आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट दे मैटर अ लॉट, दे मैटर अ लॉट। जो आपकी अफेक्शन है ना, वो हमेशा रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आप गुस्सा लड़ाई वड़ाई छोटा मोटा चलता रहता है, बट ऐसा नहीं कि भाई आपने ना कि आप एकदम ऐसा हो गए कि भाई किसी को आप वो क्यों फील कराना है कि भाई मम्मी से मिल के नहीं गया, उनसे मिल गया। दे शुड नो कि हाँ भाई। और मैं मम्मी मेरे को क्या सिखाती है ना कि ये नहीं होता मैं जा रहा हूँ, अगर मैं आता हूँ तो हमेशा मेरे को मिलते जाते हैं कि हाँ मम्मी मैं आता हूँ अभी। वाइफ बोलता मैं अभी आता हूँ, तो बेटा जाता है वो भी बोल के जाता है कि मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसको मैं सिखाता हूँ कि दादी के पैर छू के जाना है, मम्मी के छू के जाना है, मेरे करना अगर तू मेरा दोस्त है, बट उन दोनों के तू करके जाएगा। तो वो छोटा सा चीज़ें हैं, बट दे मैटर, दे स्मॉल थिंग्स मैटर मोर। कोई बहुत बड़ी चीज़ आप करो ना करो, बट छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।